Assalamu alaikum and hello everyone. I welcome you all to the Strategic Business Leader live online classes for exams in June 2021 and September 2021. Even though this SPL live online course can be utilized for exams in 2021 and 2022. Now, this Strategic Business Leader live online course is a bilingual course. That means sometime I'll be speaking in English and sometime I'll be speaking in Urdu. And this SPL course is very exclusive because this has been co-branded by PAC School of Online Learning and the Online Lecturers Academy. And this course will be taken by the two tutors, myself, Kashif Kamran, and my colleague, Mr. Hussain Kazi. Now, Mr. Hussain Ghazi will not be part of the orientation session because I'll be conducting the orientation session, and Mr. Hussain Ghazi will directly join you from his very first live class next week. So let's start on with the orientation for the Strategic Business Leader. If you're preparing yourself for exams in 2021 or 2022, this course is really effective for you. Now let's start on with the orientation phase. I would first like to introduce myself as a tutor before I introduce to all of you the paper SPL. In terms of my tutor profile as a tutor, my name is Kashif Kamran. I'm a fellow chartered certified accountant. I am teaching the SPL since it started in September 2018, and prior to the SPL paper, I was teaching the P1 and the P3 paper. I also teaches the paper AA and the AAA. My overall teaching experience is 13 plus years. I am a registered mentor for Oxford Brookes University. I am the owner for the Online Lecturers Academy, and I am associated with the PAC School of Online Learning, which is a gold approved learning provider for ACCA Pakistan. Now that is my tutor profile. My colleague, Mr. Hussain Kazi, who will be sharing this course with me. Hussain Kazi is also a fellow chartered certified accountant. He specializes in the FM paper, the AFM paper, the SPL and the SPR paper. Lots of his students have taken nationwide positions in Pakistan and beyond in the papers, particularly in the AFM, FM and the SPR paper. His overall teaching experience is 15 plus year. He's the co-owner for Online Lecturers Academy, and he's serving as a director in the HRS network. And he's also associated with the PAC School of Online Learning, a gold approved learning provider of ACCA Pakistan. So this course will be taught by two teachers, myself, Kashif Kamran, and my colleague, Mr. Hussain Kasi. The split of the course will be given to you in the orientation session today. So let's start the journey now. To understand all you need to know about SPL if you're planning your exams in June or in September 2021 or onwards in December. Now, the very first thing we need to focus on is the syllabus. The syllabus for SPL consists of the syllabus area A, B, C, D, E, F, G, and H. So that is the 8 syllabus areas. Now you can see in the 8 syllabus areas, I have marked 3 syllabus areas in red. And you can see in the bracket, I have wrote HQ, which means Hussain Kasi. So the syllabus area E, the syllabus area G, and the syllabus area H pertains to Hussain Kasi. And the syllabus area A, B, C, D, and F pertains to me. So I'm taking 5 out of 8 syllabus areas, and Hussain Kazi is taking 3 out of 8 syllabus areas. So I hope that segregation of the syllabus with the blue color and the red color is clear to all of you. Now, what exactly is the syllabus? The SPL syllabus, if you look at the syllabus area A, it is leadership. Now, leadership is a syllabus area which you must have studied initially in your F1 paper. And you have some idea about leadership, some idea about the leadership styles, the leadership theories. You cannot just deny that I have no idea about leadership as a topic. So leadership is a topic which is coming from your F1 paper, the AB paper. I hope you all agree with me.
Now, when you move down from the syllabus area A to syllabus area B, the syllabus area B is about governance. Now, again, as a student, you have a lot of knowledge about governance. You must have taken the governance knowledge from the AB paper. You must have taken the governance knowledge from the law paper, or you must have taken the governance knowledge from your AA paper, the F8 paper, by the time you reach the SPL paper. And if any one of you has done the AAA paper, you must have taken some sort of a governance knowledge, particularly about the audit committee from the AAA paper as well. So you are not zero on governance, right? You know something about governance by the time you reach the SPL paper. I hope you all agree with me on that perspective. Okay, moving on, the syllabus area C, strategy. Now, strategy is a core syllabus area for SBL because the title of the SBL is Strategic Business Leader. So when you look at the title, Strategic Business Leader, you need to understand that in terms of that, the area of strategy is a very key area of the syllabus. So I have to give a very significant time to understanding of the strategy and to make strategy clear to all of you. So strategy is the key area, right? Because the syllabus is strategic business leader. So strategy will play a very crucial part in terms of your syllabus input. Then risk. Now you have a lot of knowledge about risk from the F9 paper, the financial management paper. Is that true? All of you? Because I believe you know a bit about risk from the financial management paper. You know about the ways to mitigate the risk from the financial management paper, right? So if you look at the syllabus area A, B, C, D, at least all of you have an idea about A, you have an idea about B, you have an idea about D. So you cannot say I'm zero on understanding the SPL syllabus. You know something about SPL syllabus, right? Apart from strategy. Strategy is a key area. Now you look at the first syllabus area of Mr. Hussain Qazi's syllabus area E, that is technology and data analytics. Now we know ACCA is emphasizing a lot on technology, and ACCA is emphasizing a lot on students' understanding of technology because the future is technology, right? So you need to understand all about technology, all about data analytics, and Mr. Hussain Qazi will be dealing with that particular syllabus area, giving you all insights you need to know for your syllabus for technology and data analytics. The syllabus area F comes to me again. That is organizational control and audit, because I'm more into teaching the audit papers, the AA and the AAA paper. So I believe this is a syllabus area which I should be handling in a more effective manner, organizational controls and audit. Then the last two syllabus areas, the G and H, both belongs to Mr. Hussain Qazi, and he will be sharing his experience with you on the syllabus area G, which is about finance in planning and decision making. Now, Mr. Hussain Qazi obviously is an expert tutor when it comes to financial management, financial reporting, or strategic business reporting. So would share his experience with you in finance in planning and decision making. So it's all the numerical stuff. And then the last syllabus area, H, which Mr. Hussain Qazi will be taking on, is enabling success in change management. Now, when you look at this 8 syllabus areas, and you look at the 3 syllabus areas which pertains to Mr. Hussain Qazi, and you look at the 5 syllabus areas in blue which pertains to me as Kashif Kamran, the syllabus area A, you have a mindset. The syllabus area B, you have a mindset. The syllabus area D, risk, you have a mindset. You also have a mindset about a bit of data analytics, because data analytics has been introduced in a lot of ACCA papers in the last 1.5 years. And I believe you have a very good knowledge about controls and audit from the AB paper and from the AA paper. So I think if you look at the syllabus of SPL, you cannot say I am zero on the syllabus. And the syllabus, honestly, it's not difficult. It's about retention. It's about how you retain the key theories and the key models in the syllabus. And I'll be guiding you on that as we progress towards the start of the syllabus for SPL for June 2021 and September 2021 exams. So I hope you're all clear with the syllabus, the 8 syllabus areas, and you're clear with the breakup between myself, Kashif Kamran, and Mr. Hussain Qazi, everyone.
So is the blue and red distinction clear to all of you? Okay, so that's great. Thank you so much, right? And obviously, the two teacher methodology, right, is a very crucial methodology because since I started teaching the SPL, I'm following the two teacher model. And the two teacher model is a real effective model because one teacher is taking those syllabus areas where he is expert, and the other teacher is taking on those syllabus areas where he is expert. Yes, every teacher has its own style of deliverance, but at least the both are teaching you SPL paper. The both are teaching you how to attempt a question. The both are teaching you how to pass the SBL paper. So the objective of both the teacher is the same, and the both teachers are synced together. The both teachers are aligned together. They know when to start and when to end. But the only different thing is the way I am speaking and the way Mr. Hussain Kazi will speak obviously will be different. So every teacher has his or her unique style of teaching, and the only thing which counts at the end of the day is the objective. Are we preparing for SPL? Yes. Are both teachers preparing you for SPL? Yes. So I have found the two teacher mechanism as very effective since September 18, since I'm teaching the SPL. And I believe you all know the word synergy. Uh, 2 plus 2 is equal to 4. So when you combine people, when you combine experience, the end result is wonderful. So I hope that clarifies you, right? That was a question from Usman Heda. Okay, now moving from syllabus towards the other perspective of SPL, the syllabus split. I've already cleared the syllabus split, but I just want to make the two columns so that you have further clarity. Myself, Kashif Kamran, I'll be taking on the syllabus area A, B, C, D, and F. And Mr. Hussain Kazi, my colleague, will be taking on syllabus area E, G, and H. I hope you have marked that in clarity so you know exactly which area is being dealt by which teacher for the sake of clarity and to avoid any misunderstandings in future as well, right? Okay, moving on from the syllabus split, the BBB book is the recommended book, right? So if you want to buy a book, which you should buy, so a BBB book is the best book for the SPL paper, and that's how I have synced my syllabus, and Mr. Hussain Kazi has synced his syllabus with the BBB book. So when you look at the BBB book, there are numerous chapters in BBB book. Now, another question of a student will be which chapter is with which teacher. So I hope if you can buy the book and on the title, on the index page of the book, you can write Hussain Kazi and Kashif Kamran. So it will give you a very good split which chapters are being taught by Kashif Kamran and which chapters are being taught by Hussain Kazi. So in the BBB book, there is a stage one, and the stage one consists of three chapters: chapter one, chapter two, chapter three. That is my responsibility. You can see in the bracket KK, which is Kashif Kamran. Stage two uh, consists of another three chapters: chapter four, chapter five, chapter six. Again, that's my responsibility. Again, in the bracket, you can see the KK initials. Stage three is again my responsibility. Again, the initial of KK. Chapter seven, chapter eight, chapter nine. So every stage consists of three chapters. That's how the BPB has segregated the book, and that's wonderful. The stage 4 belongs to Hussain Kazi, chapter number 10, 11, and 12. And the stage 5 belongs to Hussain Kazi, chapter 13, 14, and 15. So in total, Mr. Hussain Kazi has three syllabus areas, right? I hope you got that perspective. And Mr. Hussain Kazi has total six chapters. So six chapters is with Mr. Hussain Kazi and three syllabus areas. I hope you're all clear on that. Three syllabus areas is with Mr. Hussain Kazi, right? And uh, myself, I have total of nine chapters, and I have a total of five syllabus areas. So I hope that's one of the frequently asked question which gets mitigated. So you know exactly what I am doing and what Mr. Hussain Kazi is doing. Now, please buy the BPP book as soon as possible. And on the index page of the BPP book, in front of the stage one, write my name. Stage two and stage three, write my name.
And in front of the stage 4, write Mr. Hussain Kazi name, and stage 5, write Hussain Kazi name. So if you have any queries pertaining to stage 1, stage 2, and stage 3, you will ask me. And if you have any queries pertaining to stage 4 and stage 5, you will ask Mr. Hussain Kazi. I hope you're all clear on that. So the BBB book is the book to buy. No exam kit, right? No exam kit. I will just make you clear the reason I'm not asking you to buy an exam kit, but the book is must. You should buy a book. I hope that's clear to all of you. Okay, moving on now. Paper format, the most important thing. Now, what makes SPL so different? And what makes SPL so unique? Or what makes SPL so difficult for students? Because initially when SPL was introduced in September 2018, there was a lot of confusion among the student community. There was a lot of misunderstanding among the student community, with over a passage of time has been mitigated. But still, the student believe SPL is a very difficult paper to pass. Now, if it is a difficult paper to pass, when we look at the global passing rates for SPL or the global averages for SPL, it's around 50%. Now, 50% passing rate for a strategic business leader exam is not bad, because we see lots of strategic optional papers have an average passing rate of like 30 to 32%. But when you look at the strategic essential papers, the SPL paper and the SBR paper, they have a very productive passing rate. So 50% isn't a bad passing rate. So that means you need to be quite optimistic that this is a doable paper. But every paper has its own challenges, whichever paper you do. And the best student is the one who overcome the challenges to pass the paper. So let's look at the paper format. The examination is based on an integrated case study containing a number of assignments. Number of assignments means the number of requirements, which will vary at each examination. So you have an integrated case study. Integrated case study. That means one case study of 100 marks, and that one case study will have the requirement 1, requirement 2, requirement 3, requirement 4, and in some examinations, requirement 5. And the requirement 1, 2, 3, 4, 5 will have the split of requirements 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, something like that. So requirements. But the case study is one. Now, what you are familiar with as students, you see different case studies in exams, right? But in the SPL paper, do we have different case studies? No, we have one integrated case study. So there is one case study, right, in the SPL paper, one. And in that one case study, you have different assignments. So one case study have different requirements. I'll just show you an actual paper after I complete my particular slide in front of the screen. So the examination is based on an integrated case study containing a number of assignments which will vary at each exam settings. These assignments or tasks may require the candidate to take on different roles depending upon situations. Now, these assignments, requirements, may require the candidates to take on different roles. In a certain requirement, you might be a chief executive officer. In a certain requirement, you might be a finance manager. In a certain requirement, you might be a member of an audit committee. So every time your role will change. Sometime you are reading a requirement and the requirement will say you are a chief executive officer. Sometime you are reading a requirement, it will say you are a member of an audit committee. Sometimes the requirement says you are a finance manager. So the roles, you might be playing different roles in different requirements. I hope that's clear to all of you. So you might be playing different roles in different requirements, but we have also seen past papers for SPL where the role was one and the examiner said you are a business consultant and you were a business consultant in all the requirements. So sometime you might be playing one role and sometime you might be playing different roles in different requirements. So I hope you're all clear on that. The next, the number of marks allocated
to all these assignments, assignment means the requirements, right? The number of marks allocated to all these assignments or the subparts of these will add up to 100 in total. Within the total marks available, there are 20 professional marks. Usually, each task will contain some professional skill marks, which may vary by examination, depending upon the requirement. All tasks must be completed. So you have a 100 marks paper, right? But in the 100 marks paper, how many professional marks you have? 20. So how many technical marks you have? How many technical marks you have? 80. So you have 80 technical marks and you have 20 professional marks. Now, what are professional marks? I'll be spending an extra time on that in my presentation today, in my orientation today, to guide you what basically are professional marks. But you need to understand that in a 100 marks paper, there are 20 professional marks and there are 80 technical marks. Now, what is the definition of a professional marks? And in every requirement, suppose you're attempting the requirement number 1, requirement number 2, requirement number 3, requirement number 4, in every requirement, there will be professional marks. In some requirement, it might be 2, in some, it might be 4, in some, it might be 6. Every requirement will have professional marks. So I'll show you an actual paper to clarify how you attack the professional marks and what is the definition of a professional marks. So 20 professional marks. Do you believe it will play a crucial part in your success in SPL? Anyone who takes majority of the professional marks, are you better to pass the SPL paper? So do you believe 20% of the paper, that's 1/5 of the paper, right? 1/5 of the paper. So do you believe these 20 marks is a crucial deciding factor between who passed the SPL paper and who fails the SPL paper? Right? So the number of marks is 100, but the marks are bifurcated between 80 and 20. And I'll be spending more time on the 20. 80 is something easy to understand. 80 is the requirements. 80 is the technical marks, which you see in every paper you do for ACCA. But 20 is the professional marks. And what is the definition of a professional marks? So I'll be shedding light on that shortly. Okay, the next thing. The examination is of 4-hour duration. One case study, that's something unusual. But with one case study, we have 4 hours. That's an extra 1 hour. Normally, in all the ACCA exams, we have 3 hours and 15 minutes. But in this exam, we have 4 hours in total. But this includes the reading and planning time. And this also includes the writing time. And this time can be used flexibly during the exam. So it's totally up to you how much time you want to spend on reading and planning and how much time you want to spend on writing. But I will give you the rule of thumb. Out of the 4 hours, how much time should be spent on reading and planning and how much time should be spent on writing the answer. So the paper format. So what's unusual in this paper format? How much time we have? 4 hours. Right? And how many case studies we have in the exam? Just one, right? So ACCA has made this a 4-hour exam because it needs quite a good amount of reading. The reading time is quite a lot as compared to the P1 exams and the P3 exams. You have one big case study with so many exhibits. So you need to read and you need to plan. And who is a good strategic business leader? The one who plans. So you cannot be a good strategic business leader in like a 15 minutes of reading and planning time. If you want to be a real good leader, I think a real good leader is the one who plans and then executes. So how much time roughly you have for planning? 1 hour. And how much time you have roughly to write a 100 marks paper? 3 hours. I think you're very familiar with writing a 100 marks paper in 3 hours, everyone. Are you all very familiar with writing a 100 marks paper in 3 hours? All of you. Yes. So what is the extra 1 hour here? Why is the ACCA giving you an extra 1 hour? Not to write, but to read. Read and plan. Read and plan. So the extra 1 hour you have, Usman, is for reading and planning. The P1 and P3 case studies were smaller.
The P1 and P3 case studies were just like as you have the AAA paper, where you have smaller case studies followed by requirements, and it's easy to plan in 15 minutes. But when you look at a strategic business leader case study, it's so long, almost like 10 to 12 pages. Now imagine 10 to 12 pages of reading before you start your answer. You need a very good amount of time to read and plan. So I hope you're all clear on the 4 hours time duration, which is something unusual with the SPL exams and a one integrated case study, right? Now, just before I take on my further presentation, throughout my live classes, I'll be using a Word file, and I'll keep sharing this Word file with all the students who will get registered with the Pack School of Online Learning later. And you will be getting this Word file. You can take a print out of this Word file and they will start becoming your notes. Now, for the orientation class, if I want to write some key notes, so the first thing is, which is important, is the paper format, where you need to have a lot of understanding, because that's the most important thing we're discussing today. Now, in terms of the paper format, you need to understand that in this paper format, you have one integrated case. That's something unusual, right? Which you must not have seen in any ACC exams. One integrated case, 100 marks. But in this 100 marks, we have 80 technical marks and 20 professional marks. 20 out of 100 marks are professional marks, which is an unusual thing, and you need to spend a lot of time here. So 20 out of 100 marks are professional marks, and 4 hours. That means 1 hour extra. Normally what you have in other ACCA papers. So I think that 1 hour extra is something which needs attention. I hope you all agree. 20 marks needs attention, not 80 marks, because the 20 marks are professional marks, and that one case needs attention. So I hope we should give attention today in the orientation session to the unusual things. Do you agree with me? The unusual thing is one case. The unusual thing is the 20 professional marks. And the unusual thing is an extra 1 hour. An extra 1 hour. So let's find the answers to the unusual things today, right? So that's the paper format, right, for the SPL exams, and it's all compulsory. Nothing, there is no choice in the SPL paper, right? You need to attempt everything asked for. So it's all compulsory, no choice. No choice is there. No choice is there. So it's all compulsory, no choice is there. That is very, very important for the student community, right? Yes, I'm just making it clear, Usman. It's just 30 minutes into the orientation. By the end of the orientation, you will have no questions to be asked to the tutor, right? Because you're asking questions which are coming up ahead in the orientation. So just keep focus on the orientation. At the end of the orientation, if you have a question, please you're more than welcome to ask it. So this is a paper format, right? So that's where you need to focus on. And when you look at the paper format, we need to find the unusual things in the paper format. Now, the first thing, before I show you a real case study today in the orientation class, if I go back to my presentation and we move towards the paper format, you will get a real world case study, which can be on 12 plus pages. Now, imagine how much you need to read, Usman, and imagine how much you need to read all the other students. 12 plus pages of reading. So that's a lot of reading, right? Now, do you understand the extra 1 hour here, everyone? Particularly Usman? Do you understand the value of the extra 1 hour? How much you need to read and how much you need to retain in that 1 hour? In that 1 hour, right? So you have a real world case study which is spread on 12 pages, right? So आपके पास जो केस स्टडी आएगी वो एक केस स्टडी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 10 से 12 पेजेस हो सकते हैं, राइट? और उन 10 से 12 पेजेस पर आपको रीडिंग करनी है. सो जब आप रीडिंग कर रहे हो तो सोचो उस रीडिंग में कितना आपको रिटेन करना पड़ेगा. और 1 घंटा जो आप केस स्टडी को रीड करने में लगा रहे हो, उस 1 घंटे में यू नीड टू रिटेन, और जो रिटेन करेगा वो इवेंचुअली उसको पास करेगा फिर. सो इट्स अ रियल वर्ल्ड केस स्टडी विच हैव 12 प्लस पेजेस. कितना टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए?
4 आवर्स। कितने मार्क्स हैं? 100। 80 टेक्निकल मार्क्स हैं जो आप लोग हर पेपर में करते हो, किसी भी पेपर में जो आप रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर रहे होते हो वो टेक्निकल मार्क्स होते हैं, राइट? बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है यहाँ पर वो 20 प्रोफेशनल मार्क्स है। सो दैट इज हाउ द पेपर इज स्ट्रक्चर्ड, राइट? सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। सो कितने पेजेस की केस स्टडी हो सकती है? नॉट एग्जैक्टली हर दफा 12 प्लस पेजेस हो, किसी एग्जाम सेटिंग में 10 पेजेस भी हैं, किसी में 11 पेजेस भी हैं, किसी में 12 भी हैं। सो वो वेरी करता है फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम, राइट? बट यू हैव टू रीड अ लॉट. That is the bottom line. I hope you all understand the bottom line. Everyone, waiting for your answers. Do you understand the bottom line of reading a lot? ठीक है? And do you understand the bottom line के 1 घंटा extra है? And do you understand the importance of 1 extra hour, everyone? So we have an extra 1 hour, right? और 20 professional marks क्या ये contribute करेंगे आपकी success में? The one who can score majority of the professional marks will stand pass in the very first exam sitting of SPL. So that is how the paper looks like, right? Let's move on. We have a lot more to discuss. 4 hours. पहले से 4 hours पे आ जाओ. ये जो आप टाइम मैनेजमेंट देख रहे हो ना, ये ACCA ने खुद पब्लिश करी हुई है. दिस इज नॉट माय टाइम मैनेजमेंट. ACCA बिलीव करता है कि आपके पास जो 4 आवर्स हैं, आप उन 4 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करोगे. इसको जरा केयरफुली देखो. ACCA कहता है कि जो आपके पास 4 आवर्स हैं, उस 4 आवर्स में इफ यू कैन केयरफुली लुक एट दिस, यहां से लेकर यहां तक, ACCA ने आपको एक टाइम चार्ट बना के दिया हुआ है जिसमें आपको 40 और 60 नजर आ रहा है, राइट? 40 और 60 पे ACCA कहता है दिस इज द रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम. नाउ ACCA believe there is a variation. Some students are very क्विक रीडर. कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं चीजों को और बहुत जल्दी रिटेन भी कर लेते हैं. तो ACCA कहता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 40 मिनट्स में रीडिंग एंड प्लानिंग कर लेते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 60 मिनट्स में रीडिंग एंड प्लानिंग करते हैं. सो ACCA कह रहा है कि आपके पास नॉर्मली जो एक एवरेज आता है ना रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम का, वो 40 टू 60 मिनट्स का आता है. 40 मिनट से कम रीडिंग एंड प्लानिंग में नहीं लग सकते, राइट? 40 टू 60 मिनट्स. सो अगर आप अभी जब अपना SPL स्टार्ट करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो अभी जब आप एक केस स्टडी पढ़ा करोगे तो आपको 1 आवर तो इजीली लगेगा, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट टाइम. सेकंड केस स्टडी, थर्ड केस स्टडी, फोर्थ केस स्टडी, फिफ्थ केस स्टडी, सिक्स्थ केस स्टडी, ग्रेजुअली आपका टाइम कम होता जाएगा ऑन द रीडिंग एंड प्लानिंग. आई होप यू एग्री विद दिस फिनोमेना. ठीक है? बट पहली दफा जब आप केस पढ़ोगे, शायद 1 आवर से भी ज्यादा लगे. डेफिनेटली लगेगा 1 आवर से भी ज्यादा, क्योंकि आप पहली दफा पढ़ रहे हो केस स्टडी, राइट? And gradually it will go down. But what is the maximum reading time we have in exam? 60 minutes. That is the maximum time you should spend on reading and planning. सिर्फ रीडिंग टाइम है नहीं, प्लानिंग टाइम है, जिसको स्टूडेंट भूल जाते हैं. मैं जब एक्सरसाइज करूंगा अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग से. बिकॉज जब आप रीडिंग कर रहे होते हो तो रीडिंग उसी वक्त इफेक्टिव होगी जब आप प्लानिंग करोगे. आपकी रीडिंग यूजलेस है अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे. सो रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम कितना है? 60 मिनट्स. सो अगर हमारे पास 4 आवर्स है, 4 आवर्स का मतलब है 240 मिनट्स, राइट? सो 240 मिनट्स में से अगर हम अपना रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम निकाल दें, विच इज 60, सो हाउ मच टाइम वी हैव टू राइट द आंसर? 180 मिनट्स. एंड मुझे ऑनेस्टली बताओ, आप लोग सब यूज्ड टू हो ना 180 मिनट्स में 100 मार्क्स पेपर करते हो 180 मिनट्स के अंदर. इज दैट नॉट समथिंग नॉर्मल? आप लोग 180 मिनट्स में अपना पूरा 100 मार्क्स पेपर करते हो, बट यहां पे आपको पूरे 180 मिनट्स मिल रहे हैं सिर्फ आंसर लिखने के लिए. नॉर्मली जो आपको 180 मिनट्स मिलते हैं उसमें रीडिंग एंड प्लानिंग भी होता है, बट यहां पे सोचो जो 180 मिनट्स हैं वो नेट मिनट्स हैं, नेट मिनट्स, नॉट ग्रॉस मिनट्स. वो नेट मिनट्स हैं टू राइट एन आंसर, राइट? सो 180 मिनट्स आप क्या करोगे? यूल राइट द आंसर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट? ऑब्वियसली उमर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कैसे करने हैं, उसमें स्क्रीन को कैसे स्क्रॉल करना है, वो तो फ्यूचर सेशंस है ना जो स्टार्ट होंगे. ओरिएंटेशन क्लास में तो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की स्क्रीन स्क्रॉलिंग पे बात नहीं कर सकते ना. बट जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में, तो स्क्रीन स्क्रॉलिंग कितनी मुश्किल है, स्क्रीन को चेंज करना कितना मुश्किल है, कॉपी पेस्ट करना कितना मुश्किल है, ये सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स का पार्ट बनेंगी ना जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, राइट? सो इट्स टू अर्ली टू आस्क क्वेश्चंस लाइक सच इन एन ओरिएंटेशन क्लास. So how much time we have to write an answer?
180 मिनट्स। तो इस 180 मिनट्स में हमें रीडिंग एंड प्लानिंग करनी है? नहीं, इस 180 मिनट्स में सिर्फ हमें आंसर लिखना है। डज दैट मेक सेंस? 180 मिनट्स टू राइट 100 मार्क्स आंसर, जो कि नॉर्मली हम एग्जाम में 180 मिनट्स में रीडिंग एंड प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, राइट? एंड हाउ मच टाइम वी हैव टू रीड एंड प्लान? मैक्सिमम 60 मिनट्स। सो ये टाइम मैनेजमेंट का जो स्पीड मीटर बना हुआ है, या टाइम मैनेजमेंट का जो मीटर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सबको क्लियर है एवरीवन? Do you understand this time management meter which ACC has given to all of you? Okay, that's wonderful. So will you be following this meter as well? How much time to read and plan and how much time to write an answer? So अब सबको क्लियर होता है कि 1 hour एक्स्ट्रा क्यों है, and what is the importance of 1 extra hour? Okay, wonderful. अब एक स्टेप आगे मूव करो. 100 marks. Now when you look at 100 marks, 100 marks में 80 टेक्निकल मार्क्स है. मुझे टेक्निकल मार्क्स एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. टेक्निकल मार्क्स वही है जो आप लोग हर एग्जाम में रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हो. हर रिक्वायरमेंट्स आपकी टेक्निकल मार्क्स है ना, मतलब डू दिस डू दैट. वो जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जो क्वेश्चन है वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जो है वो टेक्निकल मार्क्स है. आई होप यूर ऑल क्लियर ऑन टेक्निकल मार्क्स, राइट? आई नीड नॉट टू स्पेंड टाइम ऑन द टेक्निकल मार्क्स. बट टेक्निकल मार्क्स के साथ जो प्रॉब्लम है, दैट इज 20 marks of professional where I need to spend a lot of time today. दो के प्रोफेशनल मार्क्स हमारे पूरे सिलेबस में चल रहे होंगे, आज तो हम कंप्लीट भी नहीं कर सकते प्रोफेशनल मार्क्स को, बट एक जो माइंडसेट है प्रोफेशनल मार्क्स का, वो मुझे आपको देना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर यू ऑल कंफर्टेबल विद टेक्निकल मार्क्स? आप उनको अपने प्रायर एग्जाम से रिलेट कर सकते हो टेक्निकल मार्क्स को, जिसको आप बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कहते हो, जिसको आप बेसिकली कहते हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इन द पेपर, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, that's great. Let's spend time on the 20 professional marks. Let's understand what 20 professional marks are. So I'm taking on my Word file again because I need to spend a careful time on making you clear what is the professional marks. Now, when you look at the professional marks, प्रोफेशनल मार्क्स में बहुत सारी चीजें हैं जो एसपीएल में कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके गेनिंग ऑफ प्रोफेशनल मार्क्स में. 20 मार्क्स हैं जो आपको गेन करने हैं, और इन 20 मार्क्स को गेन करने में बेसिकली इन 20 मार्क्स में है क्या, व्हाट इज पार्ट ऑफ दिस 20 मार्क्स? इस 20 मार्क्स में अगर मैं इसका ब्रेकअप बनाऊं, तो इस 20 मार्क्स में आपका टोन ऑफ आंसर भी है, इस 20 मार्क्स के अंदर आपका फॉर्मेट ऑफ आंसर भी है, इस 20 मार्क्स में आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर भी है, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर भी है. और विच इज द थ्री थिंग्स. अगर किसी स्टूडेंट की टोन सही है, अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्मेट सही है, और अगर किसी स्टूडेंट की आंसर की प्रेजेंटेशन सही है, तो उसको मेजॉरिटी ऑफ द 20 मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्पेंड टाइम ऑन टोन, let's spend time on format, and let's spend time on presentation. ठीक है? ACCA ने फर्स्ट टाइम जब एसपीएल एग्जाम्स कंडक्ट किए थे सितंबर 18 में, राइट, विच वाज द फर्स्ट एग्जाम सेटिंग, और सबसे ज्यादा मुश्किल एग्जाम सेटिंग सितंबर 18 की थी, क्योंकि स्टूडेंट्स पैनिक में थे कि पता नहीं एसपीएल कितना मुश्किल पेपर है, कैसे करेंगे एंड हाउ टू गो अबाउट इट. सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट जब पहली एग्जाम सेटिंग हुई है ना सितंबर 18 में, उसके बाद एसीसीए ने एक आर्टिकल रिलीज किया था विच आई वांट टू शो यू. और इस आर्टिकल में जस्ट 1 मिनट, इस आर्टिकल में मैं आपसे शेयर भी करूंगा जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर. एक आर्टिकल एसीसी ने रिलीज किया था सितंबर 18 एग्जाम्स के बाद. जरा इस आर्टिकल की टाइटल पढ़ो, विच विल बी इंपॉर्टेंट. सी व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल. स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर 10 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम सितंबर 2018 सेटिंग. पहली एग्जाम सेटिंग थी ना 2018 सितंबर. तो एसीसी ने उसके बाद एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट टू लर्न फ्रॉम द सितंबर 18 सेटिंग, एंड विच इज अ लर्निंग फॉर हुम, आप लोगों के लिए, राइट, जो फ्यूचर में एग्जाम्स दे रहे हैं. सो सितंबर 18 स्टूडेंट्स की तरफ से जो लर्निंग्स मिली वो अब आप लोगों के लिए फायदेमंद है. तो ये आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा और आप लोग इसको पढ़ोगे आफ्टर यू रजिस्टर योरसेल्फ, राइट, फॉर द फ्यूचर क्लासेस. ना इस आर्टिकल के अंदर एग्जामिनर ने आपको तरीका बताया आंसर लिखने का, प्रेजेंटेशन. अब यू विल बी अमेज्ड लुकिंग एट दैट. एग्जामिनर ने वन ऑफ द 10 वेज में जो चीज आपसे शेयर करी, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, दिस वन, नंबर 5. सी दिस नंबर 5 और नंबर 6 को जरा पढ़ो क्लियरली. 10 things to learn from September 18 exams. नंबर 5, नंबर 6, जरा इसको क्लियरली खुद रीड करो. नंबर 5 को जरा पहले.
आई एम गिविंग यू 1 मिनट पॉज, मैं नहीं बोलूंगा 1 मिनट तक, आप लोग जरा 1 मिनट में ही पढ़ो। नंबर 5, स्टार्ट रीडिंग इट। जी, डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? कुछ समझ में आया? अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ। अब अगेन ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर आप लोग कहते हो कि एसपीएल के लेक्चर्स उर्दू में होने चाहिए। सो इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश आनी भी चाहिए ना। तो ये तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, एसपीएल का जो एग्जामिनर है वो आर्टिकल्स उर्दू में तो नहीं लिख सकता। सो प्रोबेबली इसको समझना बहुत जरूरी है जो आपने स्क्रीन पे पढ़ा है। सो इज दैट क्लियर? हमें लॉन्ग पैराग्राफ्स में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है एसपीएल के अंदर। एग्जामिनर बता रहा है कि लॉन्ग पैराग्राफ क्या होता है। एनी पैराग्राफ that has more than 4 good sentences is likely to be long। जरा इसको पढ़ो केयरफुली, लिख लो इसको कहीं अपने पास। अगर 4 sentences से ज्यादा लंबा पैराग्राफ है तो एग्जामिनर कह रहा है दैट्स अ लॉन्ग पैराग्राफ। मैक्सिमम कितने सेंटेंसेस हो सकते हैं पैराग्राफ में? मैक्सिमम 4। 4 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। मोर देन 4 good sentences इज लाइकली टू बी टू लॉन्ग। एग्जामिनर कह रहा है कि आप जब अपना नया पॉइंट लिखो तो उसको नए पैराग्राफ से स्टार्ट करो। आप अपने सारे पॉइंट्स एक पैराग्राफ में नहीं लिख सकते। मेनी पॉइंट्स इन द सेम पैराग्राफ। आई होप ये आपने पढ़ा है, मेनी पॉइंट्स इन द सेम पैराग्राफ, राइट? मेनी मेनी पॉइंट्स इन द सेम पैराग्राफ। मेनी पॉइंट्स इन द सेम पैराग्राफ। सो डज दैट मेक सेंस? क्या समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन आपके प्रोफेशनल मार्क्स का पार्ट है। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिखोगे और अपने आंसर को हेडिंग से स्प्लिट नहीं करोगे, कंटेन्ड लॉन्ग पैराग्राफ्स without header splitting up the answer and were thus not professionally presented। क्या प्रोफेशनल मार्क्स में प्रेजेंटेशन इंक्लूड हो रही है एवरीवन? क्या एग्जामिनर कह रहा है कि जिस स्टूडेंट ने लॉन्ग पैराग्राफ में आंसर लिखा और उसने हेडिंग्स भी यूज नहीं करी, वो प्रोफेशनल आंसर्स नहीं थे? तो क्या ये डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म है एसपीएल के अंदर? अवॉइडिंग लॉन्ग पैराग्राफ इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एवरीवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट एवरीवन? राइट एवरीवन? क्या हम आंसर लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं? नहीं। क्या हमें उसको शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना है? यस। क्या हमें हेडिंग्स को यूज करना है एवरीवन? हमें हेडिंग्स को यूज करना है। इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म? Okay, that's great. Let's look at the number first thing, right? Number first thing क्या है? Presentation of the answer. Presentation of answer में examiner हमें क्या कह रहा है? Examiner कह रहा है कि if you want to write a good presentation of an answer, write in short paras, maximum 4 sentences in each para. In each para, and the maximum 4 sentences will develop 1 point, right? For each new point, start a new para. Start a new para. And each para should have an heading to split it. Have I wrote anything wrong here? Short para, maximum 4 sentences in each para. क्या आपका कोई पैरा 2 से 3 सेंटेंसेस का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा? 4। मैक्सिमम 4। और हर नया पॉइंट एक नए पैरा से स्टार्ट होगा और ईच पैरा शुड हैव एन हेडिंग टू स्प्लिट इट। ठीक है? आपका जो एक पैरा है वो एक पॉइंट को डेवलप कर रहा है, राइट? वन पैरा इज इक्वल टू वन पॉइंट डेवलपमेंट एंड मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलते हैं ना एक पॉइंट को डेवलप करने के, वो 2 है। 2 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं एक पॉइंट को डेवलप करने के एसपीएल के अंदर। यस, बिल्कुल यही एग्जामिनर कह रहा था ना। मैं नहीं कह रहा। आपका नाम बेसिकली मुझे अपेयर नहीं हो रहा। आपका नाम मेरे सामने जो आ रहा है वो न्यू आ रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम बेसिकली एज अ स्टूडेंट, बट आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर खुद क्लियर कर रहा है ना। एग्जामिनर कह रहा है कि हेडिंग्स यूज करना प्रोफेशनलिज्म का पार्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने हेडिंग्स यूज नहीं करी उनका आंसर अनप्रोफेशनल था। थ्योरेटिकल पेपर्स मैं खुद ट्रिपल ए पढ़ाता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि हेडिंग्स के साथ आंसर लिखो।
आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो लाइव क्लास ले रहे हैं जिन्होंने मेरे से ट्रिपल ए पढ़ा है. आई इनकरेज राइटिंग आंसर्स इन हेडिंग्स. थ्योरेटिकल पेपर आप हेडिंग्स के बगैर नहीं कर सकते. आप एक न्यूमेरिकल पेपर नहीं कर रहे, आप एक थ्योरेटिकल पेपर कर रहे हो. सो थ्योरेटिकल पेपर की जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है वो हेडिंग्स के साथ आती है. आपका जो मार्कर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए बहुत ईज हो जाती है. अगर आप अपने मार्कर के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करोगे तो फेल हो जाओगे. आप अपने मार्कर के लिए ईज क्रिएट करोगे, द मार्कर विल हैव फार बेटर टाइम टू स्पेंड ऑन योर आंसर and to make you pass. Is that clear? Presentation of the answer. Can we move back to the PDF? Okay. So avoid long paragraphs. Do you believe this is part of professional marks? क्या एग्जामिनर खुद कह रहे हैं यहाँ पर 10 not professionally presented. So do you believe professionally presented is part of the 20 professional marks? Everyone? Very good. Okay, number 6 को जरा रीड करो in 1 minute. Read number 6. ये number 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने. वो 2 पेजेस पे जा रहे हैं. आई होप यू कैन रीड इट आउट. 1 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो फिर मैं I'll discuss with you. Number 6. ठीक है. सो एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है ऊपर ब्रीफिंग नोट या मेमो की हेडिंग नहीं, वो तो रिक्वायर्ड है. बट एग्जामिनर कौन सी हेडिंग की बात कर रहा है? एग्जामिनर कह रहा है पैराग्राफ हेडिंग्स. कैन यू सी दिस पैराग्राफ हेडिंग्स? ऑल ऑफ यू, कैन यू सी सब हेडिंग्स? सो एक तो हेडिंग आपकी ऊपर आएगी ना, लेटर. सपोज आप लेटर लिख रहे हो तो आप ऊपर लिखोगे लेटर. आप मेमो लिख रहे हो तो आप ऊपर लिखोगे मेमो. बट अंडर दैट विल यूज द सब हेडिंग्स. सो एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है? पैराग्राफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, राइट? सो यू हैव टू यूज the each para. इसको ही क्लियर कर देते हैं. You should have a paragraph heading, you should have a paragraph headings and you should have subheadings. Suppose करो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है where you need to write in a letter or no, so you need to write in a memo. Suppose आपको एक मेमो लिखना है और उस मेमो में आपको एडवांटेजेस बताने हैं ऑफ द अल्फा कंपनी. केस स्पेसिफिक एडवांटेजेस है, राइट? रोट लर्न एडवांटेजेस नहीं है एसपीएल के अंदर. एडवांटेजेस to alpha company, advantages to alpha company of having an internal audit department. और इसके मार्क्स जो है ना वो 8 है. तो आपको टोटल 4 एडवांटेजेस बतानी है कि अल्फा कंपनी को क्या एडवांटेजेस मिलेंगी ऑफ हैविंग एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. इसको आप रोट लर्न करके नहीं जा सकते, केस में से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. केस में से देखना पड़ेगा कि अल्फा कंपनी को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे. अब सपोज आप लिखते हो मेमो, ठीक है? डोंट बिलीव दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ द मेमो. मैं आपको मेमो का सही फॉर्मेट सिखाऊंगा. मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ. आप मेमो लिखते हो तो मेमो इज अ हेडिंग, राइट? मेमो के नीचे आप लिखते हो टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट. ठीक है? मेमो किसको जा रहा है, कौन लिख रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है और मेमो की डेट क्या है. ठीक है? ये आपने लिखा. ये वाली हेडिंग तो जरूरी है ना, क्योंकि ये तो फॉर्मेट है ना, ये तो फॉर्मेट है. सो टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट आपने लिखा मेमो में. अब आप मेमो लिखना स्टार्ट करोगे. ठीक है? मेमो के स्टार्ट पे एक हेडिंग आ जाएगी इंट्रोडक्शन. आप मेमो का इंट्रोडक्शन लिखोगे. अब इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको एडवांटेजेस बतानी है, तो पहले आप मेन हेडिंग लिखोगे एडवांटेजेस ऑफ, सॉरी, जस्ट 1 मिनट. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ये आपने मेन हेडिंग डाली. और मेन हेडिंग के अंदर अब आप जब एडवांटेजेस लिखना स्टार्ट करोगे तो आपकी पहली एडवांटेज जो है उसकी एक हेडिंग आएगी. फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल, सॉरी, फर्स्ट एडवांटेज, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर. मैं जर्नल लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली वो केस में से लिख रहे हैं. मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले आपने ऊपर मेन हेडिंग डाली एडवांटेजेस, फिर आपने नीचे लिखा रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर. अब रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर के नीचे आप जो पैराग्राफ लिखोगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो पैराग्राफ कितने सेंटेंसेस का होगा? मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस लॉन्ग. ठीक है? इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे. अब ये पैरा खत्म हुआ, इसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग आ जाएगी improves business credibility.
इम्प्रूव बिजनेस क्रेडिबिलिटी, कि अगर आपके पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा तो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी इंहांस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब आपने ये हेडिंग डाली, इसके नीचे फिर आप एक पैराग्राफ लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे इन इन अ 4 सेंटेंस लॉन्ग। सो समझ में आ रहा है कि व्हाट टू डू विद हेडिंग्स। सो एक तो आपके फॉर्मेट की हेडिंग है ना, लेटर की हेडिंग्स, मेमो की हेडिंग्स, ब्रीफिंग नोट की हेडिंग, बट एक आपकी पैराग्राफ हेडिंग्स है, फिर एक आपकी सब हेडिंग्स है। सो इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? यस, ऑब्वियसली जो जो जकी आप हेडिंग्स में लिख रहे हो वो तो टेक्निकल मार्क्स है ना, बट अगर आप हेडिंग के बगैर लिखोगे तो आपको टेक्निकल मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट आपको प्रोफेशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बगैर हेडिंग्स के लिखना स्टार्ट कर दो तो टेक्निकल मार्क्स तो तब भी कवर हो जाएंगे। आप पैराग्राफ्स में क्या लिख रहे होगे? ऑब्वियसली एडवांटेजेस। सो एक स्टूडेंट अगर पैराग्राफ के बगैर लिखना स्टार्ट कर दे, शॉर्ट पैराग्राफ्स के बगैर लिखना स्टार्ट कर दे, हेडिंग्स के बगैर लिखना स्टार्ट कर दे, तो जकी क्या उसको टेक्निकल मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बट क्या उसको प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे? नो। सो अगर 20% मार्क्स में आपका जीरो स्कोर आ जाए, यानी कि प्रोफेशनल मार्क्स में आपका स्कोर 0 आउट ऑफ 20 आ जाए, तो सोचो बाकी 80 मार्क्स में से 50 लाना आसान है एसपीएल के अंदर? इज इट इजी टू गेन 50 आउट ऑफ 80? नो। मैक्सिमम लेंथ वलीद, मैक्सिमम लेंथ एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ की कितनी है? 4। 4 इज नॉट द लिमिट, मतलब वो कह रहा है 4 से ऊपर लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो आपका कोई एक सेंटेंस आपका एक पैराग्राफ 2 सेंटेंसेस का भी हो सकता है। आई होप दैट मेक सेंस टू यू वलीद, राइट? आपका कोई एक पैराग्राफ 3 सेंटेंसेस का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ कितनी होनी चाहिए एवरीवन? मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ कितनी होनी चाहिए एवरीवन? 4। बट कैन इट बी लेस देन 4? मैक्सिमम है ना, तो कैन इट बी लेस देन 4? डेफिनेटली। आई होप दैट वाज वेरी कॉमन सेंस, राइट वलीद? कि आपका मैक्सिमम लेंथ 4 है ना, तो आप मैक्सिमम से कम भी हो सकते हो, 3 भी हो सकते हो, 2 भी हो सकते हो। जरूरी तो नहीं कि हर पैराग्राफ 4 सेंटेंसेस का ही हो, कोई 2 सेंटेंसेस में भी खत्म हो जाएगा, कोई 3 में भी खत्म हो जाएगा। सो इट विल वेरी, राइट? मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब होता है कि इससे कम भी हो सकता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, सो इसका मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर क्या 20 मार्क्स में कंट्रीब्यूट कर रही है? इज दैट ट्रू, इज दैट फॉल्स एवरीवन? सो 20 मार्क्स के अंदर क्या प्रेजेंटेशन काउंट हो रही है या नहीं हो रही? इज दैट ट्रू, इज दैट फॉल्स? इट्स ट्रू, राइट? थैंक यू। ओके, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है फॉर्मेट। फॉर्मेट तो वो है ना कि हर रिक्वायरमेंट में आपसे कहेगा राइट अ लेटर, तो वो तो फॉर्मेट है ना। अगर आपने फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखा तो वो तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहता है राइट अ लेटर, तो अगर आप लेटर फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखोगे तो आप प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे? नहीं। एग्जामिनर कहता है राइट अ मेमो, एग्जामिनर कहता है राइट अ ब्रीफिंग नोट, एग्जामिनर कहता है राइट अ रिपोर्ट। अब एसपीएल में तो फॉर्मेट्स इतने सारे हैं, I cannot write them all in my orientation class today. Write a report, make 2 presentation slides, presentation slides बनाओ, write a press release, write a press release. अब अगर एग्जामिनर आपसे कोई फॉर्मेट मांग रहा है जो कि हर रिक्वायरमेंट में मांगेगा, रिक्वायरमेंट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिस फॉर्मेट में वो आपसे आंसर चाह रहा है, क्या आप अपना आंसर उस फॉर्मेट में लिखोगे अपने प्रोफेशनल मार्क्स गेन करने के लिए? या आप बोलोगे ठीक है लेटर छोड़ दो, मैं अपना आंसर वैसे ही लिख देता हूँ विदाउट अ लेटर? अब लेटर का एक स्टाइल होता है, लेटर का एक स्टार्ट होता है, लेटर का एक एंड होता है, मेमो का एक स्टार्ट होता है, मेमो का एक एंड होता है। हर 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 फॉर्मेट को सीखना चाहिए ना, क्योंकि हर फॉर्मेट का स्टार्ट और एंड मुख्तलिफ होता है। डू यू ऑल एग्री विद मी? सो फॉर्मेट ऑफ एन आंसर, सो डू यू बिलीव फॉर्मेट ऑफ एन आंसर इज पार्ट ऑफ द 20 प्रोफेशनल मार्क्स? ठीक है, आप ये जरा देखो यहाँ पे एक आर्टिकल है जो शायद मैंने कल आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया था, इवन यू आर नॉट रजिस्टर्ड। ये आर्टिकल था which I want to show you on screen. ये आर्टिकल मैंने कल आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। आई होप यू ऑल एग्री, अगर आप लोगों ने इसको ओपन करके देखने की जहमत करी है। इट इज एम्ब्रेसिंग चेंज, शेपिंग फ्यूचर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एसपीएल। ये आर्टिकल एग्जामिनिंग टीम ने लिखा, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एसपीएल।
और इस आर्टिकल में एग्जामिनिंग टीम ने आपको सारे फॉर्मेट्स बताए, मैक्सिमम, ये सारे नहीं है, मैक्सिमम जो आपके पेपर का पार्ट है। सी यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको, जस्ट 1 मिनट, नीड टेक यू टू द प्रीवियस पेज। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको सारे फॉर्मेट्स बताए हैं, कैन यू सी देम? लेटर, ईमेल्स एंड मेमोज 3 फॉर्मेट्स हो गए, रिपोर्ट 4 फॉर्मेट्स हो गए, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड नोट्स 5 फॉर्मेट्स हो गए, विजुअल एड्स सच एज ग्रिड्स एंड हीट मैप्स 6 and 7 हो गए, ब्रीफिंग नोट, ब्रीफिंग पेपर, वर्किंग नोट्स, प्रेस रिलीज एंड प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। सो ये वो फॉर्मेट्स हैं जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनिंग टीम ने हमें फॉर्मेट्स का लिखने का तरीका नहीं बताया। सो ये वंडरफुल आर्टिकल है जो मैंने आपके साथ कल व्हाट्सएप ग्रुप पे रिलीज किया था यस्टरडे, जस्ट टू गाइड यू कि ये वो आर्टिकल है जिसमें वो सारे फॉर्मेट्स गिवन हैं जिन फॉर्मेट्स को आपको यूज करना है एग्जाम में। सो लेटर कैसे लिखना है मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे। ईमेल कैसे लिखनी है इस आर्टिकल को पढ़ोगे। मेमो कैसे लिखना है इस आर्टिकल को पढ़ोगे। रिपोर्ट कैसे लिखनी है इस आर्टिकल को पढ़ोगे। सो मुझे भी आंसर इसी आर्टिकल से देना है, आपको भी आंसर इसी आर्टिकल से फाइंड करना है। सो इज एवरीवन क्लियर कि ये एक आर्टिकल है जो आपके साथ शेयर हुआ है। इस आर्टिकल को आप अगले 2 से 3 दिन में पढ़ने की कोशिश करोगे। सो यू नो द फॉर्मेट्स, यू नो हाउ टू राइट द फॉर्मेट्स, राइट? ओके, दैट्स वंडरफुल। सो इस आर्टिकल को हम ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जब हम पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, तो पास्ट पेपर स्टार्ट जब करेंगे तो हम इस आर्टिकल को रेफर करेंगे, क्योंकि मुझे आपको खुद बताना है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर। सो फॉर्मेट्स, ओके, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। अभी तक तुमने बहुत आसान बातें करी हैं, फॉर्मेट सबको समझ में आ रहा है, राइट? प्रेजेंटेशन सबको समझ में आ रही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोन ऑफ द आंसर। आंसर की जो टोन है वो कितनी क्रिटिकल है। अब आंसर की जो टोन है वो क्या होनी चाहिए? हाउ मेनी टोन्स आर देयर? ठीक है, आंसर की टोन में आ जाती है स्किल्स, एंड हाउ मेनी स्किल्स आर देयर इन एसपीएल? 5 skills. Commercial acumen is one skill, evaluation is another skill, skepticism is another skill, communication is another skill, communication is another skill, and analysis is another skill. 5 skills हैं जो आपके पेपर का पार्ट है। स्किल्स, ये शायद पता नहीं वर्ड्स आपने सुने हैं या नहीं सुने, बट ये स्किल्स हैं। आप लोग में से अगर किसी ने प्रोफेशनल एथिकल प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल किया है, तो एथिकल प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल में भी ये सारी स्किल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। जब ये एसीसी वाले रेकमेंड करते हैं कि जो भी स्टूडेंट एसपीएल पेपर से पहले अपना ईपीएसएम करेगा, उसके चांसेस ऑफ पासिंग आर मोर। ACC कहता है कि the students who attempt the EPSM prior to the SBL exam have a far greater chance to pass in the first attempt, क्योंकि ये सारे, अगर आप लोगों में से किसी ने EPSM किया है तो ये सारी स्किल्स EPSM का पार्ट है, एथिकल प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल। तो ये स्किल्स उसका पार्ट है। कैन एनीवन एग्री विद मी? ठीक है, इसका मतलब आप में से किसी ने रिसेंटली किया है EPSM का आप लोग कंफर्म कर सकते हो? एनीवन हु हैव रिसेंटली डन EPSM इन द लास्ट 6 months to 1 year? ओके, सो आप लोगों ने स्किल्स देखी होंगी, ठीक है। बट अगर किसी को ईपीएसएम करना है, नहीं करा, तो आई वुड प्रेफर कि उसको एसपीएल एग्जाम से पहले करो। ठीक है, अगर किसी को करना है, नहीं करा, तो ईपीएसएम को एसपीएल एग्जाम देने से पहले करो, बिकॉज उससे आपकी पासिंग अपॉर्चुनिटी इंप्रूव हो जाती है टूवर्ड्स द एसपीएल एग्जाम, और इसको एसीसीए वाले क्लेम करते हैं। ठीक है, बट ये जो 5 skills हैं ये आप सीखोगे ओवर द पैसेज ऑफ द सिलेबस। कमर्शियल एक्यूमेन एक स्किल है, इवैल्यूएशन एक स्किल है, स्केप्टिसिज्म एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, एनालिसिस एक स्किल है। ये आपके आंसर की टोन है। आंसर की टोन कैसे पता चलेगी? लेट मी शो यू वन थिंग। जरा आप एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन कैन यू ऑल सी अ पेपर, December 18 पेपर, जिसको मैं एज अ सैंपल पेपर यूज कर रहा हूं फॉर माय सेशन टुडे। इस पेपर में December 18 का पेपर, मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा क्योंकि फिर मैं आपको एक
in my next class I'll tell you how to read and how to plan, because that will take a lot of time, right? But जब आप question में requirements देखते हो of the paper, uh, okay, let's look at the first requirement. सबको screen पे first requirement नजर आ रही है? Everyone? ठीक है, अब देखो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. फर्स्ट रिक्वायरमेंट को जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है यहां से, ठीक है, और एंड होती है यहां पर. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. मैंने ग्रीन ग्रीन स्टार्ट और ग्रीन एंड पे डाला है. इसको जरा 1 मिनट में रीड करो योर सेल्फ. फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हमें प्रेजेंटेशन कैसे पता चलेगी, फॉर्मेट कैसे पता चलेगा, स्किल कैसे पता चलेगी. जैसे इसको रीड करो इन 1 मिनट, 1A को, एंड वंस यू आर रेड मुझे बता देना डन. ओके गुड. सो जब आप एक रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, जैसे नॉर्मली आप एग्जाम में पढ़ते हो, तो रिक्वायरमेंट का जो पहला पार्ट है ना, वो तो वही है जो आप नॉर्मली एसी से पेपर्स में करते हो. द चीफ बिजनेस एनालिस्ट हैज आस्क्ड यू. अब वो जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो पता चलेगा यू कौन है, आप कौन हो. हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट. क्या प्रिपेयर करना है? ब्रीफिंग नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है. आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर. सो फॉर्मेट पता चल गया. व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर? Do we know the format of writing the answer? Briefing note. किसको लिखना है briefing note? Finance director को. For consideration at the next board meeting. ठीक है, आपके briefing note से उसको help मिलेगी ये consider करने के लिए next board meeting में, which discusses the key factors. तो हमारे briefing note में technical marks क्या है? The briefing note should discuss the key factors. Discuss the key factors, which has enabled highlight to be सक्सेसफुल इन द होम कंट्री ऑफ डीलैंड. क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाईलाइट होटल सक्सेसफुल है अपनी होम कंट्री में? जब आप केस पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स नजर आएंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाईलाइट हैज बीन सक्सेसफुल इन द होम कंट्री ऑफ डीलैंड. कितने मार्क्स हैं? 16. सो हर पॉइंट जो हम डेवलप करते हैं उसके एवरेज 2 मार्क्स होते हैं. तो हमें कितने फैक्टर्स डिस्कस करने हैं अपने टेक्निकल मार्क्स के अंदर? 8 फैक्टर्स. सो किस फॉर्मेट में आंसर लिखना है? ब्रीफिंग नोट. कितनी हेडिंग्स होंगी हमारे आंसर के अंदर? कितने फैक्टर्स की हेडिंग्स होंगी? 8 फैक्टर्स की हेडिंग्स होंगी, और हर फैक्टर के अंदर हमें एक पैराग्राफ लिखना है. वो पैराग्राफ मैक्सिमम कितनी लेंथ का होगा? 4 सेंटेंसेस लॉन्ग. और हर पैराग्राफ से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स. तो हमें कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं टोटल? 8. सो ये तो टेक्निकल मार्क्स भी हो गए, ये उसकी फॉर्मेटिंग भी हो गई, ये उसका प्रोफेशनलिज्म भी हो गया. सो अगर मैं ब्रीफिंग नोट में अपना आंसर लिखूं, हेडिंग्स में अपना आंसर लिखूं, शॉर्ट पैराग्राफ्स में अपना आंसर लिखूं, तो क्या मेरे चांसेस ऑफ सिक्योरिंग द प्रोफेशनल मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं अलोंग साइड द टेक्निकल मार्क्स? सो टेक्निकल मार्क्स में क्या है? टेक्निकल मार्क्स में है डिस्कस द की फैक्टर्स. ये टेक्निकल मार्क्स है, ठीक है. अब इसके नीचे जो लाइन आ रही है ना, वो अनयूजुअल है टू एसपीएल एग्जाम. ये लाइन आप किसी और पेपर में नहीं देखते. इसके नीचे जो लाइन है वो यहां पे लिखा हुआ है, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. ठीक है. अब जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं उसमें एक स्किल का मार्क है, और एक आपकी आपकी फॉर्मेट का है, और एक आपकी प्रेजेंटेशन का है. तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. तो इसको जरा प्लीज क्लियर करो. अ, जब आप प्रोफेशनल मार्क्स को देखते हो तो प्रोफेशनल मार्क्स में एक मार्क है स्किल का, जिसको मैं बेसिकली कहता हूं टोन, फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन. सो अगर आपने ब्रीफिंग नोट में आंसर लिखा उसका भी मार्क है, अगर आपने सही प्रेजेंटेशन में आंसर लिखा उसका भी मार्क है, बट आपकी जो टोन है, आपकी जो स्किल है, वो एग्जामिनर आपको अलग से बता रहा है. प्रोफेशनल स्किल मार्क्स. अभी इस लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से, और इसको मैं लेकर आ रहा हूं अपनी वर्ड फाइल के अंदर. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये जो आपको हर रिक्वायरमेंट के अंडर ये चीज नजर आएगी ना, जो एग्जामिनर यहाँ पे लिख रहा है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, इसके मार्क्स कितने हैं? 3. तो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर 3. ओके, इसको ले जाओ अपनी वर्ड फाइल पे वापस, एंड वी जस्ट टेक दी
example. We're taking an example from the December 18 paper, right? December 18, question number 1, part A. ठीक है, उसमें this is what was written. Just एक minute. Let me set that up for all of you to understand once and forever. Though again, it's too early. आप over the passage of classes सीखोगे, but I'll try to make it as easy for you to understand once forever. Okay. ठीक है, ये क्लियर? अब ये सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस वक्त? प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल. ठीक है, अब ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है फ्रॉम December 18 पेपर. आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग. एग्जामिनर कह रहा है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल. कितने मार्क्स अवेलेबल है? 3. अब ये 3 मार्क्स जो अटेन करने हैं आपको, इनको आप कैसे अटेन करोगे? इनको अटेन करने के लिए आप रिकॉल करोगे कि मेरे ट्यूटर ने मुझे क्या बताया था कि टू गेट दीज 3 मार्क्स आई नीड टू डू समथिंग. इन 3 मार्क्स के लिए मेरे पास टोन भी होनी चाहिए. इन 3 मार्क्स के लिए मेरे पास स्किल भी होनी चाहिए, फॉर्मेट भी होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, राइट? और स्किल को हम लोग बेसिकली रेफर कर रहे हैं एज द राइट टोन ऑफ राइटिंग द आंसर, ठीक? सो जिस स्टूडेंट ने ये 3 काम कर लिए, अब यहाँ पे मार्क्स 3 है तो आप सबको लगेगा कि 1 मार्क फॉर स्किल, 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क फॉर प्रेजेंटेशन. नॉर्मली ऐसा है, बट कहीं पर अगर 2 मार्क्स होंगे, कहीं पर अगर 4 मार्क्स होंगे, स्टिल ये तीनों काम करने पड़ेंगे. ये तीनों काम करोगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द 3 मार्क्स मिलेंगे. सो एम करो कि या तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिले या आपको 2 आउट ऑफ 3 मिले. अगर आप 2 आउट ऑफ 3 का एम करते हो देन दैट्स आल्सो वेरी गुड. सो स्किल, फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन. अब लेट्स सी, फॉर्मेट तो आपने सबने सीख लिया ना, प्रेजेंटेशन भी आप सबने सीख ली. लेट्स फाइंड द स्किल. प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर, किसके लिए? डेमोन्स्ट्रेटिंग. ये वर्ड आपको हर सेंटेंस में नजर आएगा. डेमोन्स्ट्रेटिंग कौन सी स्किल? डेमोन्स्ट्रेटिंग कौन सी स्किल? एनालिसिस. इज एनालिसिस वन ऑफ द 5 स्किल्स जो मैंने अभी आपको बताई है? कमर्शियल एक्यूमेन, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, कम्युनिकेशन. इट इज वन. तो एग्जामिनर कौन सी स्किल डेमोन्स्ट्रेट करने का कह रहा है आपको? एनालिसिस. अब मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि एग्जामिनर अगर यहां पे फुल स्टॉप लगा दे, सपोज करो एग्जामिनर इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दे. फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दे एग्जाम में: प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल, फुल स्टॉप. तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि एनालिसिस स्किल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करनी है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मैंने जो एग्जामिनर की स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया है. प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल. तो आप एग्जाम में सोचोगे एनालिसिस स्किल वो कैसे शो करूं, वो कैसे लिखूं, उसको कैसे लिखना है? इज दैट क्लियर एवरीवन? बट क्या एग्जामिनर आपको बता रहे हैं एनालिसिस स्किल के आगे कुछ? अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए तो स्टूडेंट तो ब्लैंक हो जाएगा एग्जाम में. द स्टूडेंट विल बी ब्लैंक कि क्या करूं मैं. यानी कि वो रोट लर्न करके जाएगा, घर से रोट लर्न करके जाएगा कि एनालिसिस स्किल का क्या मतलब होता है, एनालिसिस स्किल को कैसे लिखना है. बट एग्जामिनर आपको ब्लैंक तो नहीं कर रहा एग्जाम में. एग्जामिनर कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनालिसिस स्किल. क्या उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है? नहीं. एग्जामिनर आपको ये बता रहा है हाउ. लुक एट दिस, ये इसका हाउ है. एनालिसिस स्किल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? लुक एट दी हाउ. लुक एट दी हाउ. यहां से जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, इधर से लेकर इधर तक, ये उसका हाउ है. कैसे? दिस इज एनालिसिस स्किल को अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अगर आपको एनालिसिस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो एग्जामिनर कह रहा है ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करो. हाउ? समझ में आ रहा है? सो कौन सा स्टूडेंट है जिसको एनालिसिस स्किल के मार्क्स मिलेंगे? इन इन्वेस्टिगेटिंग and considering information from range of sources. So जिस स्टूडेंट ने इन्वेस्टिगेशन कर ली फ्रॉम द रेंज ऑफ सोर्सेस, तो क्या उसको ये मार्क्स मिल जाएंगे स्किल के? हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, किसी को याद है? फैक्टर्स which contributed to the success of highlight in the home country. यही काम करना था ना हमें for 16 marks everyone.
ठीक है, अब ये 16 मार्क्स तो आप ले लोगे अपनी 8 हेडिंग्स लिखकर. सो फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ हाईलाइट इन द होम कंट्री 16 मार्क्स. तो आप कितने फैक्टर्स लिखोगे? 8 फैक्टर्स लिखोगे. बट अगर वो 8 के 8 फैक्टर्स आपने किसी एक सॉरी पेज ऑफ केस स्टडी से निकाली, तो क्या होगा? एग्जामिनर कह रहा है फ्रॉम रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेस. स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट एग्जाम में जाएगा, पेपर रीड करना स्टार्ट करेगा. पेपर का पेज नंबर 1, यहां से एग्जिबिट स्टार्ट हो रहा है. कैन यू ऑल सी? यहां से केस स्टार्ट हो रहा है, एग्जिबिट नंबर 1 पेज, ये पहला पेज है ना केस स्टडी का, एग्जिबिट नंबर 1. वो पहला एग्जिबिट पढ़ता है और सारे फैक्टर्स पहले एग्जिबिट से निकाल लेते हैं. उसको टेक्निकल मार्क्स तो मिल जाएंगे, उसको टेक्निकल मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो पहला पेज पढ़ के 8 फैक्टर्स निकाल लेता है और इस पहले पेज के ऊपर से, फर्स्ट पेज पे से वो 8 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेता है जिसकी वजह से हाईलाइट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है. तो 8 फैक्टर्स वो अगर यहां से आइडेंटिफाई कर लेता है तो क्या उसको अपने टेक्निकल मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे. बट क्या उसको एनालिसिस स्किल के मार्क्स मिलेंगे? क्योंकि एग्जामिनर कह रहा था कि उन 8 फैक्टर्स को रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से निकालो. तो अगर कोई स्टूडेंट उन 8 फैक्टर्स को पूरा का पूरा केस पढ़ के निकाले, पूरा का पूरा केस पढ़ के निकाले, तो क्या वो बेटर स्टूडेंट है? क्या उसको एनालिसिस मार्क्स मिलेंगे? या हम 8 फैक्टर्स को सिर्फ एक पेज ऑफ इंफॉर्मेशन से निकाल लें? तो क्या एग्जामिनर बता रहा है कि एनालिसिस स्किल को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है? इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड कंसिडरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेस. तो जिसने रेंज ऑफ सोर्सेस से फैक्टर्स निकाल लिए, तो उसको लुक एट दिस, फैक्टर्स फ्रॉम अ सिंगल पेज. एक स्टूडेंट नंबर 1 8 फैक्टर्स, और स्टूडेंट नंबर 2 फैक्टर्स फ्रॉम ओवर द केस स्टडी, फ्रॉम ओवर द केस स्टडी स्कैटर्ड, फ्रॉम ओवर द केस स्टडी स्कैटर्ड. मतलब बहुत सारी केस स्टडी पढ़ के स्कैटर्ड फैक्टर्स निकाले. दिस इज द स्टूडेंट नंबर 2, और इसने भी टोटल फैक्टर्स जो निकाले वो 8 निकाले. अब मुझे बताओ कि स्टूडेंट नंबर 1 जो है उसको अपने 16 टेक्निकल मार्क्स मिल जाएंगे? यस और नो? उसको अपने 16 टेक्निकल मार्क्स मिल जाएंगे? यस. ओके. और उसको सपोज करो उसने सही फॉर्मेट में अपना आंसर लिखा, उसने अपना आंसर जो है वो ब्रीफिंग नोट में भी लिखा, उसने अपना आंसर ब्रीफिंग नोट में भी लिखा, और उसने अपना आंसर शॉर्ट पैराग्राफ्स में भी लिखा, और उसने अपना आंसर हेडिंग्स में भी लिखा. तो क्या उसको अपने प्रोफेशनल मार्क्स मिल जाएंगे? कितने मिलेंगे? पूरे 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे? पूरे 3 आउट ऑफ 3 प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे? नहीं, उसको मिलेंगे मैक्सिमम 2 आउट ऑफ 3. जस्ट एन आइडिया, राइट? जस्ट एन आइडिया, क्योंकि उसने एनालिसिस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया. बट जो स्टूडेंट नंबर 2 था, उसने ब्रीफिंग नोट भी लिखा, शॉर्ट पैराग्राफ और हेडिंग्स भी लिखी. उसने ब्रीफिंग नोट भी लिखा, शॉर्ट पैराग्राफ और हेडिंग्स भी लिखी. बट उसने जो 8 फैक्टर्स निकाले, दे वर स्कैटर्ड ऑन डिफरेंट पेजेस. सो इस स्टूडेंट को 16 टेक्निकल मार्क्स तो मिल रहे हैं. जस्ट अज्यूम कि दोनों स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, राइट? 16 आउट ऑफ 16. बट प्रोफेशनल मार्क्स, क्या इस स्टूडेंट को 3 आउट ऑफ 3 प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इसने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो स्कैटर्ड ओवर द केस निकाले? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये समझ में आ रहा है सबको? तो जो एग्जामिनर सेंटेंस लिखता है ना प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का, अगर उसको आप लोग केयरफुली पढ़ लो एग्जाम में, तो ये फौरन पता चल जाता है कि प्रोफेशनल स्किल मार्क्स लेने कैसे हैं. एक तो फॉर्मेट है ना, वो तो आप ले लोगे, एक प्रेजेंटेशन है वो भी आप ले लोगे, बट उसका स्किल मार्क्स कैसे लोगे? तो स्किल मार्क्स के लिए एग्जामिनर हमेशा आपको एक क्लू देता है. वो क्लू कहां पर है? वो दिस इज द क्लू. मैं इसको हमेशा कहता हूं क्लू है ये. आई नॉर्मली रेफर दिस एज अ क्लू. ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये इस ब्लू वाली चीज को मैं कहता हूं ये एग्जामिनर का क्लू है. ये एग्जामिनर की हिंट है. ये एग्जामिनर की हिंट है. दिस इज द हिंट ऑफ द एग्जामिनर. दिस इज द क्लू ऑफ द एग्जामिनर in investigating and considering information from range of sources. So is that clear to everyone? So क्या आप स्किल के बाद पढ़ोगे कि एग्जामिनर स्किल को कैसे पोर्ट्रे करवाना चाह रहा है, या एग्जामिनर स्किल के बाद फुल स्टॉप लगा देता है? लुक एट दिस सेंटेंस जो मैंने सेंटेंस नंबर 2 लिखा था, सॉरी. लुक एट द सेंटेंस नंबर 2. प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल, फुल स्टॉप.
Is that difficult, or is what the examiner giving is difficult? Which is difficult? The sentence, the professional skill का sentence number 1 जो मैंने copy paste किया है, या professional skill का sentence number 2 जो मैंने derive किया है? Which is difficult to understand? The one is difficult, or the one is easier to understand? The one is easier, right? क्योंकि sentence number 2 में कैसे पता चलेगा कि एनालिसिस स्किल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करनी है? डू यू बिलीव इट इज अ ब्लैंक स्टेटमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल, फुल स्टॉप? कैसे? बट नंबर 1 में क्या एग्जामिनर खुद से बता रहा है कि एनालिसिस स्किल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करनी है? ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करो, यही मतलब होता है ना एनालिसिस का। तो इन्वेस्टिगेट हमेशा ज्यादा सोर्सेस से किया जाता है, इन्वेस्टिगेट हमेशा 360 डिग्री होता है, या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पेज पर होती है, या इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे पेजेस पर होती है? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, एक एक और एग्जांपल हो, मुझे सिर्फ ये क्लियर करना है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। एक और एग्जांपल एंड विल गो टू द वाइंडिंग अप ऑफ द ओरिएंटेशन टुडे। अब वापस आ जाओ December 18 पेपर पे, और एक और एग्जांपल हो, जस्ट टू मीन के मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है। ओके, रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपने पढ़ ली, राइट? सो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के 16 टेक्निकल मार्क्स थे, और रिक्वायरमेंट नंबर 1 के प्रोफेशनल मार्क्स कितने थे? 3। सो टोटल वर्थ कितनी थी रिक्वायरमेंट 1A की? रिक्वायरमेंट 1A वाज वर्थ 19 मार्क्स। 16 मार्क्स स्कोर करना आसान है, बट वो जो 3 प्रोफेशनल मार्क्स हैं उनका स्कोर करना बहुत जरूरी है टू पास द एसपीएल पेपर। ओके, जरा रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ो। 1B, सॉरी, रिक्वायरमेंट नंबर 1B पढ़ो, और अब मुझे बताओ कि क्या करोगे। रीड द रिक्वायरमेंट 1B जिस तरह से अभी मैंने आपको पढ़वाई है लाइव क्लास के अंदर। स्टार्ट रीडिंग इट, यू हैव 1 मिनट। ओके, हैव यू डन विद द रीडिंग एवरीवन? ओके, गुड। मैंने इस रिक्वायरमेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी वर्ड फाइल पे, ताकि मैं आपसे अब Q&A सेशन करूंगा, जस्ट टू सी के पिछले 30 मिनट्स में जो हमने डिस्कशन करी है दैट्स थ्रू टू एवरीवन, राइट? क्वेश्चन नंबर 1B की वर्थ कितनी है? 16 प्लस 4, 20 मार्क्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 1A की वर्थ थी 19 मार्क्स, 16 प्लस 3, तो यहाँ पे 4 प्रोफेशनल मार्क्स है। यूजिंग द फैक्ट शीट रेफर टू अबव, वो जब आप अबव पढ़ोगे तो जो भी फैक्ट शीट रेफर हो रही है, तो यूजिंग द फैक्ट शीट अबव एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो केस में गिवन होगी, प्रिपेयर अ रिपोर्ट। सो हमें किस फॉर्मेट में आंसर करना है? प्रिपेयर अ रिपोर्ट। सो हमें रिपोर्ट आंसर करनी है, राइट? फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर विच evaluates the proposal to acquire the Comfy Stay Hotel. So Highlight Hotel एक नए होटल को acquire करना चाह रहा है, which is a Comfy Stay Hotel. Evaluates the proposal to acquire the Comfy Stay Hotel. उस प्रपोजल में कितने पॉइंट्स होने चाहिए? लाइक एवरेज। तो एक स्टूडेंट कहेगा अच्छा 16 मार्क्स है, और 16 मार्क्स के लिए मुझे इवेल्युएट करना है, सो आई शुड डिवाइडेड बाय 2 मार्क्स पर रेलेवेंट पॉइंट। सो मेरे पास तकरीबन 8 इवेल्युएशन होनी चाहिए कि कॉम्फी स्टे होटल अक्वायर करना है या नहीं करना। सो इवेल्युएट द प्रपोजल टू अक्वायर, सो आई शुड हैव 8 इवेल्युएशंस, राइट? और इन 8 इवेल्युएशंस को जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास 8 हेडिंग्स बन जाएंगी। इट शुड इक्वल टू 8 हेडिंग्स followed by 8 reasonable length paragraphs. 8 reasonable length paragraphs. Is that right?
एवरीवन, और मुझे जो फॉर्मेट यूज करना है वो फॉर्मेट मुझे यूज करना है रिपोर्ट का। सो अगर मैंने हेडिंग्स यूज करी फॉलोड बाय रीजनेबल लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स और मैंने फॉर्मेट यूज किया रिपोर्ट का, तो क्या मैं अपने 50 to 60% प्रोफेशनल मार्क्स गेन कर रहा हूँ आउट ऑफ द 4 प्रोफेशनल मार्क्स आई हैव? सो मैंने जब हेडिंग्स यूज करी, मैंने रीजनेबल लेंथ में अपना रीजनेबल लेंथ ऑफ पैराग्राफ लिखा जो मैंने अभी आपको गाइड किया है, मैंने रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज किया, तो मेरे पास जो 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, क्या उनमें से मैं 50% या मोर देन 50% गेन कर रहा हूँ? क्योंकि उसमें से कुछ मार्क्स जो है वो स्किल के हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू गो डाउन एंड यू रीड द स्किल, तो एग्जामिनर कह रहा है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट है ना जैसे 1A में था, ये एग्जामिनर की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग, बिल्कुल सेम स्टार्ट है ना। अब क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है? इवैल्यूएशन स्किल डेमोन्स्ट्रेट करनी है, इवैल्यूएशन स्किल डेमोन्स्ट्रेट करनी है। बट अगेन एग्जामिनर इवैल्यूएशन स्किल के बाद फुल स्टॉप लगा दे और सब कुछ हटा दे आगे से, क्रॉस। अब सोचो जरा क्या करोगे। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इवैल्यूएशन स्किल। अब स्टूडेंट सोचेगा इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, या इवैल्यूएशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है। वो गूगल पे जाके सर्च करेगा, अच्छा इवैल्यूएशन का क्या मतलब है। मैं जब आप घर पे पेपर कर रहे हो बैठ के, आप बोलोगे अच्छा इवैल्यूएशन का गूगल मीनिंग बता रहा है कि इवैल्यूएशन में ऐसा करते हैं, तो एक स्टूडेंट कुछ करेगा, एक स्टूडेंट कुछ करेगा। बट एग्जामिनर डिमॉन्स्ट्रेटिंग इवैल्यूएशन स्किल के आगे फुल स्टॉप तो नहीं लगा रहा ना, वो उसके आगे कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू में क्या कर रहा है? इन प्रेजेंटिंग। सो आपका जो क्लू है वो यहां से स्टार्ट होगा, इन प्रेजेंटिंग। सो दिस इज वेयर यू गेट द क्लू। सो आपका जो क्लू पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लू, इवैल्यूएशन स्किल का क्लू, कि कौन सा स्टूडेंट है जिसको इवैल्यूएशन स्किल के मार्क्स मिलेंगे। किस स्टूडेंट को मिलेंगे? जो इन प्रेजेंटिंग अ बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रपोज्ड एक्विजिशन, जो बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करेगा। सो हाउ वुड यू गेट द मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन स्किल? अगर आप एक बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करोगे ऑफ द इंफॉर्मेशन कि हमें कॉफी स्टे होटल अक्वायर करना है या नहीं करना। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है, बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल का? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है ना, बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल। यानी कि बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल का मतलब है कि अगर जब आप अप्रेजल करोगे कि कॉम्फी स्टे होटल अक्वायर करना है, तो उस बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल में फेवरेबल पॉइंट्स भी हो सकते हैं और एडवर्स पॉइंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि आप इन कुछ पॉइंट्स की बेसिस पे ये कह सकते हो कि कॉम्फी स्टे होटल अक्वायर करना है, और कुछ पॉइंट्स की बेसिस पे कह सकते हो कि नहीं करना है, क्योंकि हर पॉइंट उस एक्विजिशन के फेवर में नहीं होगा। एग्री? सो जब आप बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल कर रहे हो, तो यू माइट लुक एट द फेवरेबल पिक्चर एंड द एडवर्स पिक्चर। बैलेंस का मतलब होता है 360 डिग्री। बैलेंस का मतलब होता है होलिस्टिक, सब चीजों को देखो, सब चीजों को देखो, होलिस्टिक। बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल अप्रेजल करो, फेवरेबल एडवर्स। तो आप सिर्फ केस में से वो पॉइंट्स निकालोगे जिसमें जिसमें फेवरेबल पॉइंट्स होंगे कि हमें कॉम्फी स्टे होटल अक्वायर करना चाहिए? नहीं। एग्जामिनर क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द प्रपोजल। तो हो सकता है उस प्रपोजल में कोई नेगेटिव पॉइंट भी हो, उस प्रपोजल में कोई गलत बात भी हो, उस प्रपोजल में कोई क्रिटिसिज्म भी हो। सो विल यू ओनली लुक एट द फेवरेबल साइड? और आप जो एट एट हेडिंग्स बनाओगे, क्या उन 8 हेडिंग्स में सिर्फ आप ये बताओगे कि बस हाँ हमें कॉम्फी स्टे होटल अक्वायर करना है, या उसमें आप एक बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करोगे, some points in favor and some points against? Are you getting my point, everyone? So जो स्टूडेंट बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल कर लेगा, क्या वो अपने मैक्सिमम 4 मार्क्स स्कोर कर सकता है? कैन बी स्कोर्ड। तो मैक्सिमम 4 मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे क्विक आंसर्स करो। एक बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेट इज इक्वल टू रिपोर्ट। नंबर 3, शॉर्ट पैराग्राफ्स। एंड नंबर 4, हेडिंग्स। तो मुझे बताओ कि 4 मार्क्स गेन करने के लिए इज दिस व्हाट यू नीड टू डू एवरीवन? Let me take this on the next page and ask you this question. Okay, let's take to the page number 3 now.
ओके, अब मुझे आंसर करो कि 4 मार्क्स गेन करने के लिए जो मैंने ब्रेकअप बनाया है, क्या आप सब इन ब्रेकअप से एग्री करते हो? तो मुझे बताओ कि प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का जो एक टेंशन है एसपीएल स्टूडेंट कम्युनिटी को, वो क्यों है? इस मुझे बताओ कि प्रोफेशनल स्किल मार्क में अगर आपने सही फॉर्मेट यूज किया, अगर आपने हेडिंग्स यूज करी, अगर आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करे, और अगर आपने सही स्किल यूज करी, और वो स्किल सही यूज करना कितना आसान है मुझे बताओ। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, 1A एंड 1B। तो क्या एग्जामिनर स्किल के बाद फुल स्टॉप यूज कर रहा है, या एग्जामिनर स्किल को आगे बता रहा है कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट करनी है? So is examiner telling you how to demonstrate the skill everyone every time? Demonstrate. So क्या एग्जामिनर आपको बता रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट कैसे करनी है, या एग्जामिनर डेमोन्स्ट्रेट को ब्लैंक कर रहा है? आई होप ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी राइट? राइट, सो Mavish, I think you have an issue at your end, so you need to disconnect and reconnect. So demonstrating the skill, उसके marks clear हो रहे हैं सबको? Is everyone clear? Waleed, are you clear? Usman, are you clear? Umar, are you clear? Haji Ismail, are you clear? So demonstrating blank तो नहीं है ना रिजवान या उमर या वलीद? demonstrating के आगे वो आपको क्लू प्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो बताओ मुझे कि प्रोफेशनल मार्क्स गेन करना कोई मुश्किल काम है क्या? उसको हम रोट लर्न करके जा सकते हैं एग्जाम हॉल में प्रोफेशनल मार्क्स को? 20% ऑफ द पेपर के लिए मुझे रोट लर्निंग करनी है? सो सही फॉर्मेट यूज करो, हेडिंग्स यूज करो, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखो, और एग्जामिनर की जो प्रोफेशनल स्किल मार्क का सेंटेंस है उसको केयरफुली रीड करो। जो जो स्टूडेंट एग्जामिनर का प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का सेंटेंस रीड करेगा, क्या उसके पास फेयर चांसेस हैं कि वो 100% प्रोफेशनल स्किल मार्क्स स्कोर कर सकता है? तो जो ये सेंटेंस एग्जामिनर आपके पेपर में यूज करेगा आफ्टर एवरी रिक्वायरमेंट, वापस आ जाओ दिसंबर 18 पेपर में, हर रिक्वायरमेंट के बाद क्या आपको प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल का स्टेटमेंट नजर आ रहा है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में चले जाओ, इसको पूरा घर पे पढ़ना, दिसंबर 18 के पेपर को मैंने शेयर किया था कल व्हाट्सएप ग्रुप पे। हर रिक्वायरमेंट के बाद क्या आपको नजर आ रहा है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल? जरा घर पे प्रैक्टिस करके देखना, 2A की, और घर पे प्रैक्टिस करके देखना 2B की। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल। सो आई होप यू गेट बेटर। अली, बेसिकली ऑब्वियसली जून में पाकिस्तान में तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है ना, तो वो तो उस पर कोई डिनाइल नहीं है, ठीक है? एसीसी ने आपको बहुत चांस दे दिए पाकिस्तान के अंदर, मार्च में होने थे, जून में शिफ्ट हो गए। अब ऑब्वियसली कोई चांस नहीं है, तो इवेंचुअली अब आपके ऊपर एक नेसेसरी ईवल है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स देने, ठीक है? सो दैट्स द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के लिए मैं आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करूंगा। हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस, मैं तो वैसे भी वर्ड फाइल पे अपने आंसर्स लिखता हूँ, बट मैं आपको इंटरफेस भी दिखाऊंगा, इंटरफेस इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा, इंटरफेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जब असाइनमेंट्स कर रहे हो, तो आप लोग असाइनमेंट्स जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है उसी पे करो, और फिर उसका आंसर मेरे साथ शेयर करो। मतलब आई वुड नॉट प्रेफर कि आप लोग हैंड राइटिंग में लिखोगे कोई भी चीज। अपनी वर्ड की स्पीड इंक्रीज करो, जितने भी आंसर्स आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखो। अब बेटर है कि उसको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लिखो। जितना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करोगे, उतना आपका एग्जाम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अगर आप लोग पेन एंड पेपर पे लिख रहे हो और एग्जाम में जाके कंप्यूटर बेस्ड करोगे, तो वो तो फिर डिजास्टर्स है ना, ठीक है? पाकिस्तान में अभी तक जो वी नेवर नो कि कोविड की सिचुएशन कितनी रैपिडली चेंज होती है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। अभी तक एज ऑफ टुडे 7 मार्च जो अफर्मेटिव है वो ये है कि पाकिस्तान में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है, सारे स्ट्रेटेजिक लेवल पेपर्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2021, ठीक है? बट सारे एग्जाम सेंटर बेस्ड होंगे, रिमोट नहीं है, सेंटर बेस्ड है। यानी कि जैसे आप सीबी एग्जाम सेंटर में जाके देते थे, वैसे ही आप सीबी एग्जाम सेंटर में जाके दोगे, ठीक है? बट हाँ, इसमें कोई ड्रामेटिक चेंजेस आ जाती हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली खुदा अल्लाह ना करे कि कोई कोविड के नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली हो सकता है एसीसी हैज टू रिवर्ट बैक टू रिमोट इन्विजिलेशन। बट सो फार सो फोर्थ, इट्स ऑन ट्रैक फॉर सेंटर बेस्ड एग्जाम्स।
जी, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल भी है। पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देगा भी। एक दफा आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओगे तो पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के लिए पासवर्ड लॉगिन प्रोवाइड भी करेगा, और ट्यूटर जो है वो आपके साथ मल्टीपल सेशंस करेगा आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। सो एक दफा आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओगे, सो जो नेक्स्ट 1 वीक है जो कि एडमिशन वीक है, क्योंकि आज संडे है और फिर क्लासेस जो फॉलो होंगी वो नेक्स्ट वीकेंड से होंगी, तो आपके पास पूरा 1 वीक है जिसमें आपको डिसीजन लेना है कि आप एसपीएल जून में दे रहे हो या नहीं दे रहे। दूसरा, आपको ये भी डिसीजन लेना है कि अगर आप एक दफा रजिस्टर्ड हो जाते हो पैक के साथ तो इवेंचुअली आपको एक्सेस मिलेगा। ये जो सेशंस होते हैं ना, इनकी रिकॉर्डिंग्स पैक के प्लेटफॉर्म पे चली जाती है, और पैक के प्लेटफॉर्म पे फिर आपको लॉग इन पासवर्ड मिलेगा, और उस लॉग इन पासवर्ड के थ्रू आप इन सेशंस को मल्टीपल टाइम प्ले कर सकते हो अप टू द डे ऑफ एग्जाम। सो लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आप जितनी दफा इन सेशंस को सुनना चाहते हो आप सुन सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो अप टू द डे ऑफ एग्जाम। ठीक है, अब कुछ फाइनल डिस्कशंस कर लेते हैं। आई होप यू आर ऑल क्लियर नाउ बिटवीन द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मार्क्स। ठीक है, एंड आई होप बाकी प्रोफेशनल स्किल्स को मैं इन द फ्यूचर क्लासेस डिस्कस कर लूंगा। मैंने आपको सारी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में एक आइडिया दे दिया है कि उसको उसको रोट लर्न करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रोफेशनल स्किल्स को आप एग्जाम में पढ़ोगे कि एग्जामिनर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्किल को क्या बता रहा है। तो अगर एग्जामिनर कहेगा डिमॉन्स्ट्रेट द कमर्शियल एक्यूमेन, तो क्या एग्जामिनर आगे बताएगा कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करनी है एवरीवन? या अगर एग्जामिनर कहेगा डिमॉन्स्ट्रेट द एनालिसिस स्किल, तो क्या एग्जामिनर आगे बताएगा कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करनी है? या अगर एग्जामिनर बताएगा डिमॉन्स्ट्रेट द स्केप्टिसिज्म स्किल, तो क्या आगे वो बताएगा कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करनी है? तो इन स्किल्स को याद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन इन यू जस्ट नीड टू रीड द एग्जामिनर सेंटेंस। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिफोर आई रैप अप माय थिंग्स फॉर द ओरिएंटेशन व्हिच आई नीड टू डिस्कस वेरी केयरफुली विद ऑल ऑफ यू। एक तो when you are enrolling for this course, right, primarily इस कोर्स का मकसद है जून एग्जाम्स। लेटर यही कोर्स है जो आप सितंबर एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हो और इवन दिसंबर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कोई चेंज ऑफ सिलेबस नहीं है। इट्स ओनली कि हर एग्जाम सेटिंग के बाद एक नया पेपर एड ऑन होता जाएगा, उसके अलावा नथिंग विल चेंज। सो अब आपकी मर्जी है कि आप एसपीएल जून के लिए प्लान कर रहे हो, या आप एसपीएल सितंबर के लिए प्लान कर रहे हो, या आप एसपीएल दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हो। इररिस्पेक्टिव, सिर्फ एक पास्ट पेपर नया आ जाएगा, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। नाउ हाउ टू गो अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको थोड़ा सा एसपीएल का प्लानर दूं ताकि आप उसको प्लान कर सको केयरफुली आफ्टर द सेशन एंड्स टुडे। ये जो कोर्स है एसपीएल का, ये मैं और हुसैन काजी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा जो हुसैन काजी आपको एक फाइनल टाइम टेबल कल दे देंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रिलीज कर दूंगा। बट द प्रॉब्लम इज के ओके, अली देखो, आप सीबीई पे नए हो ना, तो एसीसी हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी। आप प्रैक्टिस करके सीबीई में जाओगे ना। एग्जामिनर, व्हाई वुड एग्जामिनर बी फ्लेक्सिबल नोइंग कि एक स्टूडेंट पहली दफा सीबीई एग्जाम से रहा है? एग्जामिनर विल नॉट बी फ्लेक्सिबल एट ऑल, राइट। आप प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जा रहे हो ना। एसीसी ने आपको टाइम भी दिया। एसीसी ने 1-2 साल पहले से बताया हुआ है कि पाकिस्तान में मार्च 21 से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, उसको 3 मंथ्स के लिए शिफ्ट कर दिया गया जून 21 में। तो एसीसी ने तो माइंडसेट 2 साल पहले से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। सो व्हाई वुड द एग्जामिनिंग टीम बी फ्लेक्सिबल? ठीक है, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है अली फॉर जून एग्जाम्स। आपको प्रॉपर टाइम स्पेंड करना है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे, एंड यू गो टू द एग्जाम हॉल। ओके, कोर्स शेयर्ड है। हुसैन काजी अपनी क्लासेस की डिटेल शेयर करेंगे कल मेरे साथ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप कि वो वीक में कितनी क्लासेस लेंगे। बट एज पर माय एस्टिमेट 2 लाइव क्लासेस हैं जो मैं ले रहा हूँ। 2 लाइव क्लासेस मिनिमम जो मैं लूंगा इन द इनिशियल 1 मंथ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो कोर्स है और जिस तरह से मैं कवरेज करता हूँ, बिकॉज आई बीन टीचिंग एसपीएल सिंस लॉन्ग नाउ, सो आई नो हाउ टू कवर अप द कोर्स, राइट। सो दैट्स नॉट अ डिनाइल। सो 2 क्लासेस मिनिमम होंगी, एंड माई क्लासेस would be on every Saturday and Sunday, because I prefer the weekend classes. और सैटरडे अगेन द क्लास टाइमिंग्स मेरे हमेशा यही रहते हैं, फ्रॉम 9 AM in the morning to 11:30 PM AM, sorry, in the afternoon, again 9 AM 9:30 to 11:30 AM. So I'll start with 2 live classes. That's like 5 hours a week, and Mr. Hussain Kazi would definitely be starting with 2 live classes as well.
सो 2 लाइव क्लासेस से हुसैन काजी भी स्टार्ट करेंगे. सो द टाइम टेबल विल बी रिलीज टुमारो, एंड मोस्ट लाइकली हुसैन काजी की जो क्लासेस होंगी वो वीक डेज में होंगी इन द इवनिंग. सो आई विल गेट यू द टाइम टेबल टुमारो. सो एक्सपेक्ट 4 लाइव क्लासेस अ वीक. हो सकता है हुसैन काजी शुरू में 1 क्लास से स्टार्ट करें क्योंकि उनका कोर्स कम है. मेरा कोर्स ज्यादा है तो आई स्टार्ट विद 2 लाइव क्लासेस अ वीक फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल प्रोग्रेस. अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो लाइव हो रही होंगी ये पैक के प्लेटफॉर्म पे अपलोड होती जाएंगी. अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाता, किसी इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाता, कोई टाइम इश्यूज है, कोई लोड शेडिंग के इश्यूज हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के इश्यूज हैं, उसकी ऑफिस कमिटमेंट्स हैं, वो बीमार हो जाता है, वॉट एवर. सो इसकी रिकॉर्डिंग जिस दिन लाइव क्लास होगी उसके 1 to 2 डेज के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग पैक के एलएमएस पे चली जाएगी. आपके पास लॉग इन पासवर्ड पहले से मिल जाएगा आपको. जब आप एडमिशन लोगे तो आप लॉग इन पासवर्ड के थ्रू जाके उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुन सकते हो. तो दैट वुड नॉट बी एन इशू, राइट. सो अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं कुछ लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा. तो हमारी लाइव क्लासेस तो सैटरडे संडे को हो रही हैं, बट अगर मुझे लगे कि मुझे इन बिटवीन सैटरडे संडे एंड नेक्स्ट सैटरडे संडे कुछ क्लासेस को अपलोड करना है तो मैं कुछ क्लासेस को अपलोड करके आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि फर्दर क्लासेस हैव बीन एडेड ऑन. तो आप जाके उनको सुनना शुरू कर सकते हो. सो क्योंकि आई बीन टीचिंग एसपीएल सिंस सितंबर 18, सो आई हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि कोर्स की कवरेज तो बहुत मिनिमलिस्टिक है. ज्यादा टाइम जो हम प्रैक्टिस पे लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो कोर्स तो जो है ना, वो तो जो टेक्निकल स्टफ ऑफ द कोर्स है वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि कोर्स इज नॉट टू लॉन्ग. हाँ, द टाइम टेकिंग थिंग इज प्रैक्टिस. The time taking thing is the computer based exams. The time taking practice is the how you practice on the computer. तो वो time taking है. मेरा जो tentative plan है कोर्स completion का, क्योंकि in between रमजान भी स्टार्ट हो रहा है and then we have an Eid factor as well. So आप लोगों के एग्जाम्स हैं जून के फर्स्ट वीक में. So technically कोर्स को रैप अप होना चाहिए समवेयर अराउंड मई 20 से लेके मई 22 तक कोर्स रैप अप होगा. बट लास्ट डेज जो होंगे ना वो सारे प्रैक्टिस हैं. जो टेक्निकल स्टफ ऑफ कोर्स है ना वो तो बहुत जल्दी रैप अप हो जाएगा. आई प्रोबेबली बिलीव के अप्रैल मिड तक या अप्रैल 20 तक एक मेजर चंक ऑफ टेक्निकल कोर्स रैप अप हो चुका होगा. बट जो प्रैक्टिस है वो भी साइमल्टेनियसली चल रही होगी. मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, मैं प्रैक्टिस को साइमल्टेनियस करता हूं. मैं ये नहीं करूंगा कि प्रैक्टिस को हम डिले कर रहे हैं कि पहले कोर्स खत्म होगा फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी. नहीं, द प्रैक्टिस विल गो हैंड बाय हैंड विद द टेक्निकल स्टफ. So my estimation is कि May 20 and 22 को कोर्स कंप्लीट होगा. बट दैट ऑल्सो मीन्स कि हर क्लास में जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है और जो आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हैं उनको आप वीकली बेसिस पे खत्म करोगे. आप ये नहीं कहोगे अच्छा पहले सर पढ़ा लें फिर मैं पढ़ूंगा. नहीं, आप ये जब आप जून एग्जाम्स दे रहे हो तो यू हैव टू बी ऑन टोज. यू नो कि आगे रमजान भी है, यू नो आगे ईद भी है. यू हैव टू बी ऑन टोज. हर वीक का काम उसी वीक में कंप्लीट करो. तो अगर आपको किसी वीक में कोई काम मिल रहा है तो उसको डन करो उसी वीक में. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ट्रिपल ए में भी रहे हैं. उन्होंने ये 3 मंथ्स वाले सेशन अटेंड करे हैं. उसमें सिर्फ आपको ऑन टोज रहना पड़ता है, राइट. यू हैव टू बी ऑन टोज. सो डे 1, क्लास 1, यू हैव टू बी ऑन टोज. आज अगर मैंने आपसे कोई कमिटमेंट करी है कि वो जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स को जाके पढ़ो, यू शुड रीड देम टुडे. मैंने आपसे आज कमिटमेंट करी कि दिसंबर 18 पेपर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं उनको जाके रीड करो. तो यू शुड रीड देम टुडे बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन अपेयर योरसेल्फ फॉर द जून एग्जाम्स, राइट. सो जी, सारी क्लासेस लाइव ऑनलाइन होंगी जैसे आज ओरिएंटेशन हो रही है. बट अगेन मैंने वही बोला कि सैटरडे संडे को 2 लाइव क्लासेस होंगी. उसके बावजूद हुसैन काजी की 2 लाइव क्लासेस होंगी. उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ लेक्चर्स प्री रिकॉर्ड होंगे. अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग सिंस सितंबर 18. सो मेरे पास बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि उन एरियाज में हैं जहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं हुआ. सिलेबस सितंबर 18 में आया था एसपीएल का और अब तक कोई चेंजेस नहीं आई. ठीक है. सो जैसे लीडरशिप का एरिया है वो बहुत मिसकलेनियस है. इंटरनल कंट्रोल्स का एरिया है वो बहुत मिसकलेनियस है. क्योंकि मैं जो टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, बेसिकली एक एक चीज मैं वापस आपको प्रेजेंटेशन लेके जाऊंगा. जो बुक है वो बीपीपी की है जो आपको बाय करनी है. इसके अलावा आपको ट्यूटर नोट्स मिलेंगे. यू विल गेट द ट्यूटर नोट्स एंड सपोर्ट. डोंट बी वरीड अबाउट इट. मॉक असेसमेंट भी होगी तो डोंट बी वरीड अबाउट दैट. मॉक असेसमेंट है. बहुत सारी असाइनमेंट्स आप मुझे सबमिट कर सकते हो. अगर आपको कोई भी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करनी है चेकिंग करने के लिए, अगर मैं आपको लेटर क्लासेस में बोलूंगा कि प्लीज असाइनमेंट्स करके मुझे सबमिट करो, तो मेरा एक ईमेल आईडी है
दो कि वो ट्रिपल ए को रिफ्लेक्ट करता है, बट यही ईमेल आईडी है जिसमें मैं सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स को चेक करता हूँ। तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझे जितनी भी असाइनमेंट सेंड करोगे उसमें मैं आपको अपना पर्सनल फीडबैक दूंगा। ठीक है, मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, बट मेरे नोट्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो बुक पढ़ना जरूरी है मोहम्मद जाहिद अली, यू कैन नॉट स्किप द बुक फॉर एसपीएल एग्जाम्स, राइट? बुक इज मस्ट फॉर एसपीएल। सो बुक आपको लेनी है, ट्यूटर नोट्स एंड सपोर्ट्स आपको मिलेंगे, मॉक असेसमेंट्स भी होंगी, मल्टीपल असाइनमेंट्स आप अपनी ट्यूटर से चेक करा सकते हो, ओपन टू द चेकिंग ऑफ दैट। हुसैन काजी आपको अपना ईमेल आईडी दे देंगे जिसपे आप उनको असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। नाउ द लास्ट ऑफ द थिंग्स इज, ये थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ थिंग्स वुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे। मैंने आपके साथ जो प्रेजेंटेशन शेयर करी है आज, उस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको जो अपने सिलेबस एरियाज बताए थे, मैं थोड़ा सा उन पे लाइट शेड करना चाह रहा हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। मेरे जो सिलेबस एरियाज हैं वो ब्लू में आ रहे हैं, राइट? अब इनमें से कुछ ऐसे सिलेबस एरियाज हैं जिसको मैं शायद प्री रिकॉर्डेड वर्जन में नेक्स्ट वीक में अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि हर सिलेबस एरिया लिंक्ड अप नहीं है। ठीक है, हर सिलेबस एरिया को आपको आइसोलेशन में पढ़ना है। सो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 7 to 8 वर्किंग डेज फ्रॉम नाउ मैं गवर्नेंस के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड ऑडिट के ऊपर अपने जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि इसको किस सीक्वेंस में यू हैव टू स्टार्ट। लीडरशिप के ऊपर आई विल कीप वन लाइव क्लास आफ्टर यू लिसन टू द लेक्चर ऑफ लीडरशिप, ताकि उस पर Q&A सेशन हो सके। गवर्नेंस बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो जब एक दफा आप सुन लोगे तो उसके ऊपर एक लाइव क्लास रखी जाएगी और वीकली लाइव क्लास रखी जाएगी, ताकि गवर्नेंस में इंटरवेंशन हो सके। गवर्नेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप पूछ सको। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड ऑडिट एक छोटा सा एरिया है, तो उस पर एक इंटरवेंशन, एक लाइव इंटरवेंशन बहुत है। बट जो सबसे ज्यादा टाइम मैं लाइव क्लासेस में स्पेंड करूंगा, आई वुड प्रेफर कि इसको मैं प्री रिकॉर्डेड कर दूं और आप लोग इसको सुनो विद अ लाइव इंटरवेंशन। गवर्नेंस को मैं प्री रिकॉर्ड कर दूंगा और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल को मैं प्री रिकॉर्ड कर दूंगा, बट जो स्ट्रैटेजी का एरिया है इसको मैं लाइव करूंगा, बिकॉज दिस इज द कोर एरिया। ऑल लाइव क्लासेस ऑन स्ट्रैटेजी, राइट? ऑल लाइव क्लासेस ऑन स्ट्रैटेजी एंड रिस्क, अ ब्लेंड ऑफ लाइफ, बिकॉज इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत क्वेश्चंस है रिस्क के ऊपर, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता अगेन रिस्क वाले एरिया पे। लाइफ क्लासेस ऑन रिस्क एज वेल, राइट? सो एक्सपेक्ट प्लेंटी ऑफ लाइफ क्लासेस रिस्क के ऊपर भी और स्ट्रेटजी के ऊपर भी। ठीक है, एंड वलीद मेरे लेक्चर्स कॉम्बिनेशन में होंगे इंग्लिश एंड उर्दू के, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इंग्लिश उर्दू ब्लेंडेड क्लासेस लें rather than कि आप प्योर इंग्लिश में पढ़ाएं। ओके, आई फील माई सेल्फ मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज पेपर्स ऐसे हैं कि आप इनमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, बट स्टिल स्टूडेंट ये चाहते हैं कि ब्लेंड हो, तो मैं ब्लेंड में बोलूंगा। ठीक है, जैसे मैं अभी पिछले काफी देर से बोल रहा हूँ। ओके, सो स्ट्रैटेजी पे लाइव क्लासेस, रिस्क पे लाइव क्लासेस, गवर्नेंस पे, लीडरशिप पे और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल पे, क्योंकि छोटे एरियाज हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कम है, तो इन पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब आप एडमिशन ले लोगे तो जो क्लास का प्रॉपर ग्रुप है, आई थिंक हाजी इस्माइल आप एक क्लास के प्रॉपर ग्रुप में हो, क्योंकि आपने प्रॉपर एडमिशन लिया हुआ है। आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स विद इन द नेक्स्ट 2 days अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ले लो, ताकि क्लास के ग्रुप में अब मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। जो आपके पब्लिक ग्रुप्स हैं, फ्री ग्रुप्स हैं, उनमें कोई चीजें शेयर नहीं होंगी। सो इंश्योर यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल। ये स्ट्रैटेजी क्लियर है सबको कि कौन से एरियाज में प्री रिकॉर्डेड स्टफ आएगा और प्री रिकॉर्डेड स्टफ के साथ फिर वीकली लाइव क्लासेस होंगी। लीडरशिप पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, कुछ पूछना है, तो मैं लाइव क्लास करूंगा। गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, मैं लाइव क्लास करूंगा। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, मैं लाइव क्लास करूंगा, क्योंकि सिलेबस सितंबर 18 से चेंज नहीं हुआ। हाँ, प्रैक्टिस लीडरशिप के नए क्वेश्चंस, गवर्नेंस के नए क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के नए क्वेश्चंस, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, लीडरशिप, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के कोई पुराने क्वेश्चंस हैं 2018 में, 2019 में, वो ऑलरेडी मैंने उनको सॉल्व किया हुआ है, तो उसके उसके जो सेशंस हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास होगी ना, उसमें उस तक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो चुके होंगे, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कैसे सुनना है, किस तरह से सुनना है और किस सीक्वेंस पे सुनना है, और क्या सुनने के बाद क्या सुनना है। तो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में एक्सपेक्ट करो कि शुरू का 1 घंटा हम लोग स्पेंड कर रहे होंगे ऑन अंडरस्टैंडिंग दी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। और नेक्स्ट सैटरडे को हम ये भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं उनको कैसे सुनना है, ठीक है, और कितना टाइम स्पेंडिंग करनी है। तो ये सब कुछ क्लियर होगा नेक्स्ट सैटरडे को। और नेक्स्ट सैटरडे को ही
जो लीडरशिप का एरिया है, जो कि पहला एरिया है, इवन तो उसका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो चुका होगा, बट मैं लीडरशिप के ऊपर लाइव क्लास करूंगा नेक्स्ट सैटरडे को. सो लीडरशिप वुड बी द फर्स्ट लाइव क्लास नेक्स्ट सैटरडे, राइट? और इन बिटवीन द वीक, कल मंडे है ना, सो मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, आई विल कीप यू एंगेज्ड. मैं आपको अपने रिसोर्सेज सेंड करूंगा, अपनी प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा, मैं आपको बहुत सारे हैंडआउट सेंड करूंगा जो हमें नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लासेस के लिए रिक्वायर्ड है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हुसैन काजी का जो मैकेनिज्म है, टाइम टेबल, वो मैं आपसे कल रिलीज कर दूंगा. और हुसैन काजी की जो पहली लाइव क्लास होगी, वो उसका टाइम टेबल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा इन द नेक्स्ट 24 आवर्स. ठीक है? सो कोर्स रैप अप करना कोई इशू नहीं है, बिकॉज अगेन आई हैव बीन टीचिंग दिस पेपर सिंस सितंबर 18, सो आई नो हाउ मच टाइम इज टू बी गिवन. सो कोर्स इंशाल्लाह 20 मई तक रैप अप हो जाएगा. सिर्फ एक जो फैक्टर है ना, वो ईद हॉलीडेज का है, राइट? सो अगर आप लोगों को रजिस्टर करवाना है अपने आप को, सो प्लीज काइंडली आप लोगों को रजिस्टर करवाने के लिए अगर आप लोग मुझे जस्ट 1 मिनट दो, तो आई कैन शेयर यू द नंबर ऑफ द पैक एडमिनिस्ट्रेटर जिसके साथ आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवाओगे पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के साथ, जिसके साथ ये कोलैबोरेटेड कोर्स है. और जो बेसिक नंबर है मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ एवरीवन. आप लोग सॉरी, आप लोगों को मैं ये इधर चैट बॉक्स में सेंड कर रहा हूँ, तो प्लीज ये नंबर नोट कर लो. इट्स +92, just 1 minute, +92 301 841 0225. ठीक है, ये नंबर मैंने आपको सेंड किया है, प्लीज कंफर्म कर दो, हैव यू ऑल रिसीव्ड इट? दिस इज द नंबर फॉर लुकमान, एंड लुकमान इज द कोऑर्डिनेटर. इस अभी लाइव सेशन के अंदर कोई है समवन फ्रॉम पैक एडमिनिस्ट्रेशन हु इज पार्ट ऑफ द लाइव क्लास? Is there anyone from PAC administration in this live class? Okay, so मैंने नंबर शेयर कर दिया लुकमान का. Has everyone got this number? ठीक है, मोहम्मद जाहिद, आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो. अगर आप सैटरडे की क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो एटलीस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी, आप उनको मल्टीपल टाइम सुन सकते हो, आपको लॉग इन पासवर्ड मिलेगा. सो इवन इफ यू मिस द लाइव क्लासेस, यू हैव एक्सेस टू कोर्स. ठीक है? सो प्लीज गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद पैक. और जस्ट वन कंफर्मेशन, हुसैन काजी की जो फर्स्ट लाइव क्लास होगी, जिसमें वो आपको अपने सिलेबस एरियाज के बारे में एक आइडिया देंगे, जो उनके 3 सिलेबस एरियाज हैं, और अपनी लाइव क्लासेस के बारे में आइडिया देंगे, दैट इज ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे एट 7 PM. मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ, बट रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपके जर्नल व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल रहा हूँ. मैं रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में ये मेंशन कर दूंगा हाउ टू टेक एन एडमिशन. बट हुसैन काजी की पहली लाइव क्लास इज ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे एट 7 PM, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so I hope you liked the overall session today. अगर कोई मजीद क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, तो प्लीज उसको अपने ग्रुप्स में डाल देना, तो आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट. एडमिशन कैसे लेना है वो मैं जर्नल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, सो यू नो हाउ टू टेक एन एडमिशन. बट कोशिश करो नेक्स्ट 48 आवर्स में यू आर प्रोसेस्ड विद एडमिशन, राइट? सो करंटली वैसे भी डिस्काउंट विंडो ओपन है, सो इंस्टेड ऑफ द रेगुलर फीस ऑलरेडी एक डिस्काउंट रन हो रहा है, सो यू कैन अवेल द डिस्काउंट एज वेल. सो दैट वुड बी बेनिफिशियल. अगर आप टेंथ तक अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो, तो यू विल बी अवेलिंग द डिस्काउंट एज वेल, राइट? सो inshallah you will have a wonderful time with both of us, Kashif Kamran and Hussain Kazi, and you will have a wonderful course ahead. This is the first time I'm collaborating with Mr. Hussain Kazi, and he's taking all the financial areas, and he's expert in those financial areas, right? So I hope you will like our combination, and you will give us a very favorable feedback at the end of the course as well. So stay tuned for further live classes. It's a blended course in English and Urdu together. It's been collaborated between PAC School of Online Learning and the Online Lecturers Academy. And this course is also being taken by the co-teachers Kashif Kamran and Hussain Kasi, right? So I'm signing off today. Uh, I hope you will all register, and see you back with the first registered student class coming up on Friday with Mr. Hussain Kazi at 7 PM, followed by my class on Saturday at 9 AM. So you have back-to-back classes coming this Friday, Saturday, and Sunday. 3 classes.
So stay tuned for all that. So take care, all of you. Allah Hafiz. And I'll see you back Saturday. Hussain Qazi will see you back on Friday. Till then, take care. Allah Hafiz, all of you. And how was the class today? If you can just give me a quick feedback. Matlab, how was the orientation? Even though some of you have just left out, sorry. Okay, thank you very much for the feedback. Govinda, Zehra, Ali, and many others. I just missed out the names. Thank you very much. Thank you very much, Haji Ismail. Okay, then take care of yourself. I'll see you back Saturday, and Hussain Qazi will see you all on Friday. Allah Hafiz.